Okay. So hi guys. So again मैं I want to repeat the thing कि ये सेशन का जो दो टॉपिक में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि हाउ वी विल यूज एआई फॉर निफ्ट एनआईडी आल्सो एंड हाउ इट विल क्रिएट इम्पैक्ट ऑन एग्जाम एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज इन इंडस्ट्री आल्सो। फिरोज सर इज फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बट उससे पहले फिरोज सर हमारे सीनियर है निफ्ट से। एंड सर ने काफ़ी अच्छे वेबिनार और वर्कशॉप हमारे साथ पहले भी किए हुए हैं। एंड इसी कारण मैंने ऑन रिक्वेस्ट सर को बुलाया है कि लाइक सर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल चीज़ें बताएंगे, क्योंकि सर हमसे भी बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। एंड जितना मैं आपको नहीं बता पाया हूँ वहाँ से लाइक आगे की जर्नी आपको सर बता पाएंगे। सो एंड हमारे साथ मनीष मंगला सर भी हैं, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक 2 होगा, जो लोगों ने आपको लाइक जिस बारे में अवेयर किया था कि वी विल टॉक अबाउट द 1 लाख स्कॉलरशिप फॉर योर निफ्ट एनआईडी यूसीड रिजल्ट। सो बेसिकली इन शॉर्ट में आपको समझा दूं कि 1 लाख रुपए का आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है टू परस्यू योर एजुकेशन इन निफ्ट एनआईडी यूसिड। ये नहीं है कि आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाते हो उसके लिए 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप नहीं है। आपको निफ्ट एनआईडी यूसीड में जाने के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के तरफ से 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप है, और ये 100 स्टूडेंट को दिया जाता है। तो देर आर लाइक 100% चांस कि आप ले सकते हो, राइट? क्योंकि आपका अगर एजेंडा निफ्ट एनआईडी यूसीड ही है और आप पूरी तरीके से फोकस हो, तो ये स्कॉलरशिप और ये एग्जाम सब कुछ आपके लिए ही बनाया गया है और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। रही बात एलपीयू की स्कॉलरशिप की, तो मनीष सर आपको हाईलाइट करेंगे। उसमें तो 30-40% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, बट वो हमारा सब टॉपिक है। मे बी आफ्टर 30-40 मिनट वी विल कंक्लूड दैट पार्ट, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एआई एंड द ट्रेंडी टॉपिक जो आप लोग को अभी से एनआईडी या निफ्ट के एग्जाम में कैसे हेल्प करेगी। सो दिस मीटिंग एंड दिस वर्कशॉप इज ओवर टू यू सर, प्लीज Thank you कैमरा so ऑन। much for such a lovely introduction. And मैंने ना sharing का option हाँ मैं करता हूँ सर। is my screen visible? यस यस सर। Perfect. Oh, no. Okay. I hope my screen is visible to everyone. Yes, Firoz. यस सर। Perfect. So thank you so much, Chi, for such a lovely introduction, and you just made me feel so old. But yeah, it's always absolute honor to come to your webinars, and whenever you call me, it's such a pleasure because you meet me with so much of love and affection. So it's always lovely to have you being there whenever you call for some interesting topics. So this webinar today is about AI, a very, very interesting topic and very relevant topic. So whenever you will be encountering any conversations, any group discussions, any question that is relevant, AI has to be there. So it is very, very important, very, very relevant. So I'm going to just briefly tell you how I got in touch with AI and what was the conversation that I had with AI initially. So when I was using AI, when ChatGPT came in, so I started using it, but I was using it very superficially, and I thought, that is it will eventually become important. It will become very relevant. So I was buying few things, and I called my cousin who is a founder of few startups, and he's a computer genius. So I called him up, and I thought, it will be nice if I can call someone from the industry to teach student at LPU about AI and how to utilize its resources. So I called him up and I asked, my cousin's name is Satyab. I asked him, and can you give me some really nice person who can come to Punjab and probably give us a heads up how to use AI.
So he took a pause and he said, Firoz, what you're asking me is basically how to write English or how to speak English. It took me a moment and I started analyzing what I just said and what he said. So that was my first exposure. And eventually what happens, I hope English is all fine with you guys. Please let me know if I'm going too fast, or in case if you want me to repeat anything, and if you have any questions, please do ask. It'll be nice if you have an interactive session, if you can ask me whatever is on your mind about AI. I'll tell you how much I can, and probably if I couldn't tell you the latest, I can always come back to you and ask from the best of the industry people. So that was my first exposure, and he's then I started analyzing after 30 seconds of me asking Atiyab, how to utilize. I said to him, he was shifting, basically he was shifting from one house to another, and he said, you know how I'm using AI at the moment, I'm showing my things that I have at home to the camera at ChatGPT, and he's ChatGPT is giving me a complete Excel sheet of that. So that was my first exposure. I was like, oh, that's dramatic, you know. So then I started asking. Then I told him, Manika, should I treat AI as my assistant? Should I ask my assistant to get a cup of coffee? So I tell AI how to get a cup of coffee. So basically, I started treating as my chat GPT as my AI, as my assistant, and I started interacting with it. I started asking problems to AI and looking for solution. So that was my first exposure. Then I trained my AI really well, and I am super super impressed by the by the kind of results that I'm getting on every query that I have. I have such intelligent conversation with AI, and yeah, that's how I use AI. So today's workshop is basically to tell you what is AI, how does it impact fashion. Okay, so it is very important that you understand that what we are dealing. The first thought that you should come to your mind is AI is not replacing designers. They're not replacing anyone. Basically, they are making the expectation really high. So they are not going to replace you, me, or anyone. For that matter, the competition is not between the AI and human. The competition is between people who know AI and who does not know AI. So that's the whole crux of today's workshop, where you need to understand that AI is not going to replace you. You are replaceable. You are a human being. You are more intuitive. The AI at the moment is not intuitive. Probably, who knows, it will become intuitive. But the competition is not between you and AI. It is between, at the moment in the industry, is between people who know AI, how to utilize it, and then who are not utilizing. So it's very important that as a budding designer, someone who wish to join the industry, you should know how to use it and when not to use it, and when you should say, okay, I'm going to utilize the information that is given by AI, and how I fine tune that information, because AI gives you immense amount of information. The biggest problem that I see as an individual is that people of your generation are using it mindlessly. They are using ChatGPT to write even messages, to write romantic messages, to write hateful messages, to write everything, and they're not even reading. I have got through some emails. I've got through some job emails where people haven't not even bothered to replace. For example, you are sending an email, you write dear bracket recipient. Okay, this is how ChatGPT usually gives. So they are not even bothered removing that recipient in the bracket by a name. Okay, so that's the atrocity that people are putting on ChatGPT, and probably or any AI tool. So the most important thing today is to understand that AI is not supposed to be not supposed to be used mindlessly. Okay, uh,
So fashion hasn't become easier after AI. There are many ways it has become more demanding. It is the most important thing that we need to understand. So because what is happening is when you're going to Instagram, what is happening? You are seeing reels. If within 30 seconds you want to see everything. Now I think I'm assuming there's new feature in Instagram where you press the reel and it just goes faster. So that's a retain time. Today I was having a conversation with Sashi sir, and he suggested ज़्यादा लंबी workshop नहीं रखेंगे because young people like yourself are having very small retention time. आप लोगों को बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है. You do not know how to interact. That's the biggest problem. And this is not just from your coaching center ahead, but it is from the industry. So it is very important that we take it very, very seriously. So there are differences before AI, how fashion used to operate before AI, and now how it operates now. Okay. Earlier designer had months पहले इतना रिसर्च करते थे हम कि भाई रिसर्च करो, मूड बोर्ड बनाओ, फैब्रिक खरीदने जाओ, नेहरू प्ले जाइए, you go here and there and you go everywhere in the world and to design a collection. But now what is happening is अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए? एक दिन के अंदर कलेक्शन चाहिए. एक दिन भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया. Probably you need half a day. You just are good with English, you put some prompts and you are good to go to design a collection, right? So so there were a lot of time that was given to a designer. Now what is happening, since it's become so demanding, it's so vicious at the moment that हर चीज आपको अभी चाहिए. ठीक है. Now we live in a world where trends rise and fall in days. इतनी जल्दी ट्रेंड्स गिर रहे हैं. I mean, something is popular on Instagram today, tomorrow who knows where it goes, right? So it is very important designers go viral overnight and images appear on the speed of prompt, and consumer expect brands to respond instantly. कुछ image आई, they want it now. Okay, so that's the retention power that we have. AI is everywhere in the fashion. It predicts what people will buy. It analyzes million of images that is there to spot micro trend. Pinterest use karte, I'm sure everyone does, right? So where does those images come? Your algorithm has decided that okay, I'm going to show something what Firoz is want to see. I'm going to show something else to Manish on the same search. I'm going to show something else to Gauri. And probably everyone Instagram is very different. The algorithm is treating us very, very differently. Okay. So that's how you are becoming very important. One of the important question that might come to your any conversation or any NIFT interview or any NIFT question would be how AI is going to treat originality. How are you going to become original in the world of AI? So probably we'll answer that in the coming slides. So that is the speed that we are working on these days. Okay, today's designers isn't just someone who draws beautiful or drapes well. So they're not just that; they're beyond that. You need to be quick, अडेप्टेबल, इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रेटेजिक. आपको सब कुछ करना है. ठीक है. आपको पता होना चाहिए. आई वाज हैविंग दिस ब्यूटीफुल वेबिनार इन LPU a few days back, and this lady of Varanga, it's a multi-million dollar company, and she was giving a speech. My question to her was, मैंने कहा, how do you design a new collection? Are the design based on your intuition? Okay, this is something that I want to do, or they are just algorithm कि जो आपका बिका है इस वक्त उसी के basis पे you are making further design. Is it that? So surprisingly, the answer was that I make design which are selling, which the algorithm tells me. So that's where the originality is going at the moment. Okay. So but as I said, when everything become too much, there's always a pause. COVID-19 was one of the incidences that happened with us because everyone was running around, and probably 2.5 years we started realizing family is important, health is important. There's so many realization that have, and that's the beauty of nature. It tells you to stop, analyze, and then move on. Okay, so that's beauty of nature. And AI, for that matter, will give you generate Gen Z's less timeline to think, less time to operate, but yes, it's going to have its own opportunities. Okay. So probably yeah, AI, the moment you put a prompt to AI, it gives you 50 images for you, but only you can, as an individual, as a designer, only you can decide which one is true to the brand. If you're working for a brand, if you're making your own brand, so the pool of images that will come to you on screen, you have to decide, okay,
इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है, आपने सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट गोज विथ योर ब्रांड. ओके, सो बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Look how the industry has shifted. Okay, so I'm going to give you certain case studies in coming slides, and we can decide on how they are operating. So before AI actually hit the market really hard, how the fashion was operating. सीजन साइकिल हुआ करती थी, जहां पर स्प्रिंग में कलेक्शन बनती थी, विंटर्स में कलेक्शन बनती थी, ऑटम में कलेक्शन बनती थी, एंड प्रॉब्ली देयर वाज रिजॉर्ट फेयर. सो देयर वर मेजरली फोर कलेक्शन. नाउ every time you walk into a Zara store, चाहे हर हफ्ते आप जाएं, as a consumer you always want कुछ नया आया, कुछ नया आया. You always question this. Okay, so um, that's the speed which brands are moving, and as a consumer we are moving. We are always on Myntra, we are always on Nykaa, we are always on Amazon. You will be really surprised. What you are doing in your free time is either shopping online or looking at brands, whether you're buying it or not, or you're looking in Instagram. So you're spending almost 5 to 6 hours daily on social media. And that's an astonishing number. Okay. So, and why? Because AI is engaging you in different platforms. Social media by Instagram is engaging you in a different way. Facebook probably. Someone was telling me yesterday, no one uses Facebook. I was like, okay, and still Facebook remains one of the biggest platforms in the world, because we are not used TikToks, which is banned again, AI operated. So there are a lot of things that is happening. पहले क्या हुआ करता था, मैनुअल वर्कफ्लो हुआ करता था. एक बंदे ने कुछ बनाया, then it goes to, now AI has intervened. So I'm going to share that in the next slide. Limited imagery, जो Pinterest ने दे दिया, जो Google ने दे लिया. Now every single day there is various AI tool that are coming for everything. So we are exposed, we are more than exposed, we are overexposed. और हमें पता नहीं चल रहा कि हम किस इमेज को किस तरीके से ट्रीट करें. ठीक है, स्लो ट्रेंड मूवमेंट हुआ करता था पहले. देयर वाज अ वेरी स्लो ट्रेंड मूवमेंट की ओके, कुछ आया ऑनलाइन, कुछ ट्रेंडी हुआ, इट स्टेज फॉर अ व्हाइल, देन द न्यू ट्रेंड स्टार्ट. But what has happened after AI? Micro trend means the trend that comes goes within probably LPU में ही कुछ ट्रेंड शुरू हुआ. ठीक है, एंड इट डाइड देयर. ओके, सो प्रॉब्ली अनदर यूनिवर्सिटी निफ्ट में कुछ ट्रेंड शुरू हुआ, उसके आसपास कुछ शुरू हुआ, वहीं खत्म हो गया. सो वी आर लुकिंग एट माइक्रो ट्रेंड. ओके, we are not looking at trend which Amitabh Bachchan wore and probably Shah Rukh Khan wore, and then it becomes a national phenomena. We are not looking at that anymore. We are looking at micro trend. Okay, Instagram ideation, we are ideating insta ideation. वी वांट आइडिया, जो हमने सोचा हमें अभी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्केच किया, पहले स्केच करने के बाद क्या होता था, आप खाका मास्टर के पास जाया करते थे, खाका बनाएगा. पहले पैटर्न मास्टर के पास जाएंगे, पैटर्न बनाएगा. खाका मास्टर खाका बनाएगा, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करेगा, उसके बाद डाइंग के पास जाएगा. देयर सो मेनी प्रोसेस. बट नाउ व्हाट वी डू, we click or we send our sketch on AI, and we want it to be ideated, and you want the complete garment to be visible as you wish to. You change the colors and all that. So instant ideation हो रहा है आपका. तो आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिताना अपने स्केच के साथ. You can instantly ideate it. AI generated visuals, I'm sure everyone is doing that. अपने memes बनाना, अपने वो कार्टून्स बनाना, everyone is doing it. And you are also personalizing it. It's not that कि बहुत भेड़ चाल चल रही है. There's not a thing that is happening कि सबको different. We are treating our individual AIs differently. आपका chat GPT is going to give you different response for a prompt, depending on how you have trained. Okay, for example, when you किसी नए assistant को आप train करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपने उसको केबिन में बुलाया और आपने उससे कॉफी मंगाई. तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि गेट मी अ कॉफी. So what will you get is it's a surprise. What you are going to get is a surprise. But the moment you tell your assistant, can you please I feel really parched right now. Can you get me a cappuccino, large, with no sugar? Can you make it really fast so that it reaches hot to me? And please cover it up, no sugar, skimmed milk, or almond milk, whatever. So you give complete instruction to your assistant, and the result you will get is exactly what you want. This is what is happening is, the moment you give more extensive prompt to AI, it's going to be very personalized. Okay, so after AI, fashion is become very personalized. So अब क्या हुआ है इस दौरान, from a generation of no AI to a generation of AI, what is happening?
faster. Everything is faster. You want everything. You want the cab below your house in 30 seconds. You want grocery, Blinkit. You want it next to your house in 5 minutes, right? What else? Amazon. They are, every website is creating some platform the other where it is instant deliveries. Okay, so what is happening, everything is faster. You want to think faster, you want to react faster, you want to get things faster. It is to me, it gets disturbing. Okay, data driven. What is data driven? Can anyone tell me what is the word data driven? Anyone, would you like to tell me what is data driven? Any idea? If no, please tell me, by all means. No, sir. जो No. एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू डेटा, व्हाट आर द डेटा इज सेइंग, राइट? Absolutely. So what is data? Where is the data coming from? इंस्टाग्राम ने आपको ये कह दिया कि ये पॉपुलर हो गया है, ठीक है? सो व्हाट यू स्टार्ट फॉलोइंग इट, बेसिकली व्हाट यू हैज, एवरी डिसीजन दैट यू आर मेकिंग, उसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लुक एट any cosmetic brand at the moment, which probably Rene or any Fendi. So all these brands that are run by social media influencers or big celebrities, what they are doing is they are taking out data from consumer, and then they're designing accordingly. So everything has a calculated risk, calculated decision they are taking. They are not making because probably Gauri wanted something really nice and she's making it. No, they're not doing that. If the data says, okay, this is what the industry needs, this is what the fashion needs, make this. You are doing that. Okay, so everything has become data. There is so much information. आपने उस information में से क्या निकालना है अपने मतलब का, and then you are designing it. Okay, so always on. It is always on. This habit is crazy. You are not thinking, because everything is served in a silver platter. आपको डेटा ने बोल दिया ये कलर यूज करना है, आपने वो यूज कर लिया. आपने डेटा ने बोले ये फैब्रिक यूज करना है, आपने वो यूज कर लिया. डेटा ने बोलना ये कॉस्मेटिक खरीदना, आपने ये खरीद लिया. टू एन एक्सटेंट आई फील, एज एन इंडिविजुअल, एज ए डिजाइन माइंड, आई फील कि हर चीज जो हम कर रहे हैं वो डेटा ड्रिवन है, ठीक है? आप पिंटरेस्ट खोलिए, आपने पिंटरेस्ट में कुछ सर्च किया, लेट्स से आपने सर्च किया आर्ट इंस्टॉलेशन, आपने कुछ मटेरियल, everything about that is there. For that matter, my cousin was telling me the other day that all you need is just speak while you're talking to you. If I say in this workshop that, oh, I wish to buy a car, it will be surprising that what you're going to see on your Instagram feeds, you will start seeing cars, ads, people's number where you will buy. What phone is doing is hearing us. Okay, so much of information is transferring, so much of information is given, and so much of information is utilized to create what I want. So there is a lot of personalization happening, but this is always on. मतलब चले ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है? So in design, what is AI used for? हम कहाँ use कर रहे हैं? As a designer, where are we using it? We are using it for creating mood boards. हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? हम silhouettes use कर रहे हैं. मैं ये नहीं कहूंगा आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, but what you are doing is you are just creating too many options. What happens was, there was a time when designers were the most intuitive person. When I say intuition, उनको पता होता था कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. For example, I say this about me, मुझे पता होता है, I feel this something is going to be trending probably 1 year ahead. I know that, right? But now what has happened is I too has started relying too much on AI, which I have started reducing it. How I've started reading what AI has started giving me, and then I start sitting with that information. I started analyzing, does it work? Because you will be surprised, whatever ChatGPT gives you, it's always in a positive tone. You ask, let's say you ask this question, oh, I killed someone today, and did I do it right? You will be surprised by the result that AI is giving you. It will not say, oh, no, 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 you have done really wrong. You do not have the right to do kill any. It will not say that. You will be surprised that it says कि oh, it was a very hard day, you were too bothered, people really bothered you. It will not tell you that you were wrong. Okay, this is the danger. Okay, so as AI, as a designer, what we are using it for mood boards, we are using for silhouettes,
what we address, what is the length of the shirt is going to be like, what is the length of the trousers is going to be like, colorways, what are the colors that are going to be really trending, and it gives you print. What you see on your screens are print, and they're fabulous print. They look really nice on trending on people. Again, personalized. Okay. um I'm sure you understand there is a beautiful, beautiful concept which is called trend forecasting. Because हम जो आज बना रहे हैं वो आज ही नहीं पहनना होता है हमने, जो आज हम बना रहे हैं, आज जो हम बनाना चाहते हैं, वो 6 महीने के बाद जाके या 3 महीने के बाद जाके वो बन पाएगा. तो what AI tells you is trend research and forecasting. What is trend research? That sitting in 2025 December, what is going to be trending, what is going to be in the stores in December 2026, because there's a whole cycle. So AI is giving you real time tracking when you should make, when you start thinking about it, when you start making, and when you start marketing it, and when you start putting it that in the store. So it is going to give you the entire real time tracking. How many of you have heard of WGSN? WGSN? Anyone who has heard of WGSN? I'm sure आपके इंस्टाग्राम पे एक चीज आती है, कलर ऑफ द ईयर, है ना? कभी आपने देखा होगा transformative teal is the color of the year, right? So these are for agencies. These are agencies that tell you कि क्या चीज trend होगा. They not only tell you colors, they tell you the makeup, they tell you the colors of the fabric, they tell you the fabric, they tell you the lifestyle. So they're chasing us. Believe me when I say this, they are chasing us on Instagram, they're chasing us on Pinterest, they're chasing everywhere. So they are a trend forecasting agency. So they also are analyzing not just uh, trends, they are also analyzing sentiment. Okay. For example, there is this New York. I'm sure you must have seen a lot of videos of election that happened in New York. Mamdani became the governor. आप लोगों ने I'm sure देखा होगा, right? So what these AI tools are also doing, they're looking at sentiment. What are the sentiments when you look at a case study of New York? New York is basically a city where people from across the globe are staying. So they have they have housing problems, they have healthcare problems. So what Mamdani did was he catered to all those problems, and he became. Can you believe that he stood against the president of United States? Within 1 year, he became so popular on Instagram and other social media platforms that he won the New York governorship. So that's how AI helped him sentimentally. Sentiments are becoming very important. I'm sure every of you designers, budding designers, must have heard this storytelling. Every brand needs to have a story behind it. The more you engage with consumer, the more you sentimentally engage with consumer, is where you able to sell more. Okay. So probably I'm doing a PhD, and one of my topics that I'm very, very interested in, human psychology, how people think, how people react, and how people purchase, right? So the moment you engage with them, for example, if I need to sell something to Gauri, or probably I'm sure you must have seen Shark Tank. So when people appear on Shark Tank, they study the people that they want the funding from. For example, if you see this series called The Grace and Frankie, it's available on Netflix. Beautiful series. I will highly, highly recommend that you should watch that. The 80-year-old ladies, two ladies, are making this toilet. The toilet that helps you get up from the toilet once you are having a knee surgery and hip surgery. So what they are looking at, they study the entire Shark Tank team, and they saw Cuban, one of the Shark Tank member, got a hip replacement surgery. So what they started thinking was, since he got replacement, let me try and grab him, and they start catering to his understanding and needs. Okay. So sentiments are very important. Predictive analytics. What is predictive? So you analyze, okay, this is something that I need to make it prediction, intuition. That's what we are looking at. Okay. What is supply chain? I'm sure you understand that design is only design on paper. Once it come out of the design, you need raw material. You need a lot of things to manufacture it. You need people to do it. You need machinery to do it. So what is happening is, supply chain is basically tells you कि इस वक्त में, let's say for example, designers बहुत बहुत I'm sure आप लोगों ने बहुत सुना होगा,
ईद के वक्त, ईद के दौरान टेलर्स भाग जाते हैं, दे ऑल गो टू देयर प्लेसेस, राइट? ईद के वक्त, दिवाली के वक्त, all these holidays people go to their houses, right? So what happens is this is crunch of people who manufactures. I'm sure you must have heard your moms or probably you, if you are into customization, इस वक्त नहीं हो पाएगा, टेलर बोलता है इस वक्त नहीं हो पाएगा, कारीगर नहीं है ना? So this is the supply chain, and these are the relatable examples that are with us. And it is very important to understand that how AI is helping with supply chain. Probably if you want to make up a design, आपको पता है आपकी इतनी लेबर है, इतना काम होगा, इतने लोग छुट्टी पे जाएंगे, AI will give you the entire report. Okay, so you can forecast and tell your consumer, okay, you are not going to get that before 19th of August or 15th, 19th, or probably next year, right? इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, इट ऑल्सो टेल्स यू कितना रॉ मटेरियल आपके पास इस वक्त में होना चाहिए, ठीक है? कितनी लेबर इस ऑर्डर को करने के लिए इस वक्त होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी लेट ऑन योर ऑर्डर. सो ऑल दीज आर हेल्प बाय एआई एट द मोमेंट, एंड दे वंडरफुली डूइंग ग्रेट जॉब. It also reduces waste. I'm going to talk about that in the next slide. um, Now let's talk about retail. I'm sure you, everyone who are using Nika, people are or any platform, it is actually matching your foundations. They say that okay, you are using this foundation. If this suits you, this foundation of this particular brand is going to be absolute match for you, right? I'm sure you must have seen. If you buy glasses online, for example, कौन सा lens card, it shows you in real time. You upload your picture and it shows you the kind of lens, the glasses that are going to suit you. Okay, so it gives you personalized suggestions, right? It also gives you virtual try-ons. You just sit on there at your comfort of your house and tells you कि भाई ये सूट कर रहा है. अब आपने किस पे रिलाई नहीं करना, आपने सेल्समैन पे रिलाई नहीं करना. उसने कह दिया आप पे अच्छा लग रहा है, शुरू शुरू में क्या होगा, आप पे अच्छा लग रहा है, ये खरीद दो, you're not relying on, you're sitting at your home and you're trying things on yourself. There are so many websites available where you try it on yourself and the clothes, where you see does it look nice, you does not look nice. Okay, so there are a lot of virtual try-ons. Okay, size prediction tells you कि आप इस फला ब्रांड का ये साइज पहन लो, तो इस फला ब्रांड का ये साइज आपको फिट आएगा. So these are all helping in retail. व्हाट इज मार्केटिंग? अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने उसको बेचना सीख लिया, अब आप उसको मार्केट कैसे करें. ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप किसी भी मुआ से सीख सकते हैं आजकल, है ना? Those makeup artists, probably everyone has become a makeup artist these days, probably everyone has become a cook these days. So you see how people are marketing themselves and how AI is helping people who are using AI. People who have started understanding the algorithm are the people who are more successful on Instagram. Am I right? The more engaging content that you have, as I said to you, how sensitive you are towards this sentimental analysis, how sentimentally you are engaging your consumers, कितना अच्छा आप स्टोरी टेल कर रहे हैं. आपके निफ्ट के एग्जामिनेशंस में भी यही होता है. आपने बना लिया, आपको एक राइट अप लिखने के लिए मिलता है हमेशा. देयर इज अ राइट अप दैट इज देयर बिकॉज दैट्स द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू एंगेज योर examiner to say, okay, this is what my thought was when I made this. So engagements are very important. The storytelling is very important. Okay. Okay, in marketing, what you are also looking at, you are also looking at creating lookbook. आपने गारमेंट बना लिया, अब वो एक पूरी lookbook AI से बन सकती है. Infinite visuals आप बना सकते हैं. This is very important, guys. This slide is very important. अब हम also क्या कर रहे हैं, हम 3D models बना रहे हैं. Before actual garment is being made, what we are doing is we are making it online or on platforms like Flow 3D. Marvelous designers, AI plus 3D rendering. So what we are doing is we are creating garments, we are creating patterns. उसमें आपके मास्टर्स का खर्चा बच रहा है, आपका आपका दिमाग बच रहा है जो आप लोगों के साथ. And but it is also not helping with a lot of jobs. It's very non-sustainable when it comes to sustainability. But yes, they are producing absolute phenomenal thing. At LP, we are also teaching this subject called Flow 3D, where you learn how to make 3D patterns, you learn how to do virtual shows, and it works really well. Okay, why does it matter? Why this entire workshop is mattering to you? Why AI is important? Because to speed things up. Uh, uh, it is more pressure, it is more curated. आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन का क्या कर रहे हैं? आपको उस इंफॉर्मेशन के साथ बैठना है,
आपने उस इंफॉर्मेशन से अपनी रेलेवेंट चीजें निकालनी है और यूज करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाता है जो अगली स्लाइड में है, क्या एथिक्स एंड आईपी, ये मेरे ख्याल से बहुत इंट्यूटिवली मैं आप लोग बोला हूँ, निफ्ट में ये सवाल आ सकता है, व्हाट इज हाउ एआई इज हैम्परिंग एथिक्स एंड आईपी। IPs are basically originality in your work. Okay, so basically, what are you? How are you going to maintain originality when AI is available, right? So this question is very more important, very relevant. The answer to this will vary from people to people. What you are going to do is, you should answer this question in a way where you tell that AI is assisting you in giving you information. What you are doing is this. You are doing sentimental analysis, you are doing predictive analysis, and you're tracking, but you are being original. You are creating solutions for a community, and then you build up a story. Okay, it's very important that when you're answering such question, you have a story to tell. I'm sure there are a lot of workshops you must be attending, where people are unfortunately not able to give you certain examples. ठीक है, examples are very important of to any teacher for that matter. The moment I give you any reference which is close to you, for example, I was seeing when I was talking about foundation, Gauri was nodding, or she could relate to that information, right? She could know that she does it. People absolutely acknowledge what relates to you, to your problems. Okay, so it is very important when you are answering such questions, um, such question which is about ethics and IPs, you need to tell them storytelling. Why is it important? I'm sure you must have seen Shark Tank, where they give a story behind the brand, why they build up, why they build that up, right? Why is it relevant to them? How they make the entire things connect to them. So it is very important that you have a background story to tell. So whenever you are, for example, my sister was the other day called me and she said, Firoz, I want to start a brand, basically for people, students, sorry, kids with special need. What is the story? My nephew is suffering from this disease where he gets really hyper, where he's basically a child of special need. So the moment she tells that, okay, I have someone with special need and I'm doing this for them, so it's the instance that he connects to people. So it is very important that you have story to tell. How do you create stories? When you engage with your consumer. How do you create stories? When you live your life. Sitting on screen, doing everything on screen is not going to help. Stories are created when you have human interaction. So it's very important that when you get an information from your AI, you go and experiment with the people. You go and experiment with a human being, and then you do a social engagement with your consumer. That's how you get built up stories. Okay. And it also builds up transparency. Creative pressure. What is the creative pressure? A lot of people, believe me when I say this, a lot of industry people walk to us as an institution where we call them for workshop, and they said, फिरोज ओरिजिनलिटी का ना अब भरोसा नहीं रहा है, बिकॉज एआई ने इतनी हमने इतना एग्जॉस्ट कर दिया है, हालांकि अभी कुछ शुरुआत है एआई की। हमने एआई को इतना एग्जॉस्ट कर दिया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या ओरिजिनल है, क्या फेक है। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड टेलिंग माय स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग ऑन द पोर्टफोलियोज नॉट टू यूज एआई images as a product development. Do not do that, because suddenly your entire work, entire story start looking fake. आपने पूरी बहुत अच्छी स्टोरी बिल्डअप कर ली, एंड अंत में आपने क्या किया, एआई जनरेटेड इमेजेस लगा दिए। डू यू बिलीव इन दोस? You suddenly your story falls weak. Okay, so it is very important as a design student, you only work on originality, then you start also. But I'm not saying that you do not use AI. It's very important, and it is a very good conversation that जब AI से आप use करते हैं, तो by the end of it, it is not a, whenever you go for interviews, whenever you go and to talk to your teachers, you are not having a chat GPT probably in front of you at the moment. You don't have plugins that are informing you. You might, but at the moment आप नहीं कर रहे.
So whenever you are having a real time conversation with your probably your team, with your designers, with your teachers, with whosoever, engagement is real. आप आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप एआई से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारी चीजें ह्यूमन इंटरेक्शन की बेसिस पे करनी पड़ेंगी, एंड दैट्स हाउ यू बिकम ओरिजिनल. Conversation, intelligent conversation among yourself. I always tell students that please engage with yourself. Do not sit on phone always. Whenever you are sitting, that's a rule that I follow with my friends. If we are together, the phones are off, or probably we are not engaging with our phones, because that is how you become original. You start understanding people a lot more. Psychology, I'm sure everyone will agree to this, that psychology is one stream of science that has become very popular. Am I right? Psychology. People in school psychology, there are psychologists in the school, there's psychologists in the college, there's psychologists in the companies, they are helping you engage with them. Why? Because हम सबकी सैनिटरी क्वेश्चन है, हम सब दिमाग का तजावुन खो चुके हैं, मतलब ये लॉस्ट इट, वी आर सो एंगेज, हम लोगों को लगता है हमें सब पता है, बिकॉज यू हैव सीन एवरीथिंग, यू हैव सीन एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, सब कुछ देख चुके हैं, तो आपको लगने लगा कि आपको सब कुछ पता है, बट आपने किया कुछ नहीं, यू हैव नॉट डन इट, बट यू हैव सीन इट एंड यू फील दैट ओके मुझे आया, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, सब कुछ आता है, ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ह्यूमन इंटरेक्शन. आई हैव कवर्ड दिस. So there's this brand called Zildano. It is German based company. It's a German based organization where they are using 70% images on AI. Their entire weeks had converted into days. मतलब इतनी जल्दी चीजें हो रही हैं. They are laying off people, and it has become very very important. Sheen, I'm sure everyone has heard of this. What they are doing is they are creating design mindlessly. आप सोचिए, एल्गोरिदम उनको ये बता रहे ये बनाइए, बनाना शुरू कर देते हैं, ये बनाइए, बनाना शुरू, अब बिक भी रहा है, पीपल आर बाइंग इट, राइट. सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, आपको इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीजें कि आपको पता ही नहीं. द अदर डे आई वाज क्लीनिंग माय own house. I have clothes which are 10-year-old, okay, because I don't grow big in my sizes. I'm still the same, probably 10 say. So I've clothes that have been piling with me. So the other day I was looking, I have an enormous amount of clothes. Okay. So we started at LP also, we started these campaigns where donating things. We are collaborating with sustainable companies where they come and we donate people. We are working with NGOs. So we are working on such things. And those are very, very important actual issues. Okay. हमारे पास बहुत ज़्यादा किसी पास कुछ नहीं है. So let's give it. Okay. And these kind of brands are creating problems. Okay. Stitch Fix, okay, again algorithm plus styling works well for them. um big brands कौन कौन है, वो Zara है, H&M है, Nike है, Gucci, they are all using AI. इन लोगों ने अपनी जो कैंपेनिंग और उनके फोटोग्राफी के जो बजट से सब ने बहुत कट कर दिए, because they started using AI, and the results are phenomenal and people are believing in it. Okay. um एजुकेशन, अब ये हर जगह है, एजुकेशन में भी आ ही रहा है. आई टेल माई स्टूडेंट्स टू यूज एआई, बट रीड देम. आप पढ़ें, जो एआई ने रिजल्ट दिए आप उसको पढ़िए. आई हैव टेकन सेशन हाउ टू यूटिलाइज, आई हैव क्राफ्टेड 3 steps और हाउ टू यूटिलाइज एआई. द फर्स्ट इज, इफ यू आर गिविंग अ प्रॉम्प्ट, यू गिव अ कॉन्टेक्स्ट कि आप इस कॉन्वर्सेशन को क्यों कर रहे हैं, एआई के साथ बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है. सेकेंड इज, you tell them whatever you have, whatever information that you've seen, whatever you want, you give all the information. For example, you want to write up about yourself, you tell about yourself first. The context, okay, the context is that I am going to be applying for a job at so and so industry. The information is, this is my resume, please have a look at that, and this is the resume this is kind of resume that I want. You give another reference, and then you give a vision that I want a script of probably 2.5 minutes where I want to create a video series. So these are 3 steps that you should use: context, information, and vision. So these 3 steps में जब आप information देते हैं AI को, your results are phenomenal. Okay, this is I've taught my students, and this is how they can engaging themselves. Um, okay, so I'll just skip this. I'll also skip this. Okay. व्हाट इज अ हाइब्रिड डिजाइनर? अब आजकल हम एक्चुअल डिजाइनर से ज्यादा हाइब्रिड डिजाइनर बन गए, ठीक है. व्हाट इज हाइब्रिड डिजाइनर्स? बेसिकली वी वांट टू यूज क्राफ्ट, we want to use tech,
and we want to build up character. So ये चीज जब मिल जाती है ना, बड़ा आपको समझ ही नहीं आता आप कर क्या रहे हैं, आप क्राफ्टमैन के साथ काम कर रहे हैं या आप टेक्नोलॉजी वाले बन गए, आप क्या व्हाट यू कॉल बीटेक के स्टूडेंट बन गए, क्या आप एंगेज कर पा रहे हैं? सो दीज आर रियल इश्यूज दैट आर कमिंग। एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? आप प्रोटोटाइप बहुत आसानी से बना, आपने जो स्केच किया आप उसको एक्चुअल देख सकते हैं किस तरीके का लगेगा, ठीक है। ग्लोबल विजिबिलिटी विद सोशल media, you are visible everywhere. People sitting in the remotest city of Farrukhabad are being exposed to people probably sitting in Atlanta or probably sitting in Iceberg or wherever they're sitting, probably on the top of the mountain of Mount Everest. They are engaged. They are all visible. ठीक है? Human advantage, आपका taste बढ़ता है, आपकी empathy बढ़ती है, cultural stories, storytelling, because you are looking at every avenue. Okay. Um, as I said in the starting of this workshop, we are not competing with the AI. We are not, because AI is inevitably there. वो होगा, वो रहेगा और वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। We are not. It's not going anywhere. चाहते ना चाहते हुए भी हर किसी के फोन पे आजकल चैट जीपीटी है, कहीं का भी बंदा हो। जेमिनाई है, ये अब चैट जीपीटी वगैरह फ्री भी करना शुरू कर दिया है, प्रॉब्ली परप्लेक्सिटी ने 1 साल का प्रॉब्ली एयरटेल वालों को फ्री भी दे दिया है। सो कैन यू सी, इट इज बिकमिंग व्हाट्स द collection, it's called a geo. It has become like a geo. It is everywhere, right? You're not competing with AI. You're competing with people with who know how to use AI. So as I said, I started my workshop with this. um, okay, so that's the end of it. So I would really appreciate whenever you are using AI, please go through the information, please narrow down your options and segregate the information that you want. Otherwise क्या होगा, आपका prompt किसी, आजकल तो लोगों ने prompt भी बांटने शुरू कर दिए। Can you imagine the atrocity? People are selling prompts, okay? So imagine people buying those prompts, उनका सारा, for example, I was having this conversation with my one of my very very dear friend. LPU में ना वो खुलने वाला है, Zudio. Zudio, this brand Zudio, it's opening in LPU, and one of the Zudio store has opened very close to the LPU. Um, I was talking to. I went to Zudio store and I couldn't buy clothes from there. Because वो इतने सस्ते हैं, इतने माइंडलेसली बनाए गए हैं कि अगर आपने एक स्वेटर खरीद लिया है तो आप सोचिए 50 लोगों के पास वो होगा ही होगा, वो तो matlab, because it's so cheap. So I couldn't land up buying clothes. Then my friend says, okay, you can only buy from Zudio when you know how to smartly style it. Probably a lot of people are, and people, when you come to a university as large as LPU where 50,000 students are there, so so there are people who are going to be engaging those kind of clothes, right? And अगर उन्होंने probably 10,000 जोड़ी कपड़ा दिन का या 3-4 दिन में सेल कर लिया, इट्स अ बिग प्रॉफिट फॉर देम। बट अगेन, एज रिस्पॉन्सिबल डिजाइनर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप कभी भी किसी चीज को फॉर अ प्लेटफॉर्म लाइक एनआईडी एंड निफ्ट सस्टेनेबिलिटी को याद रखें। एक ऐसा मास्टर है डिजाइनर्स के पास, where you need to talk about sustainability, where you need to talk about AI, you need to get engaged very smartly, creating a balance with sustainability and AI. Because कभी भी कोई भी डिजाइन कॉलेज आपको um, ये लिबर्टी नहीं देगा जहां पर वो आप माइंडलेसली डिजाइन बनाए, ठीक है। Because sustainability is very important, craftsmen are very important, handlooms are very important. AI, as I said, is contradictory, but it is very important. So you need to find a very smooth balance between AI, सस्टेनेबिलिटी। जब ये आप इन दोनों चीजों को कॉन्वर्सेशन में लेकर आते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म लाइक एनआईडी या निफ्ट, then that's where you are holistically applying for an answer. Okay, I hope थोड़ी बहुत चीजें मैं आप लोगों को बता पाया, ठीक है। And please ask questions if you have. I'll be very very happy to answer and engage in a conversation with you. मेरे ख्याल से मेरी सारी बातें आप तक पहुंच गई हैं, मेरी आवाज ठीक थी, आई होप। Yes, sir. Yeah, please Yes, ask sir. questions if you have, because I'm almost because I'm done with what I was supposed to do today. And I'm so sorry. Probably it's quite a late hour to have a engaging. So I tried my best to be as engaging as possible with you today. So please ask if you have any questions, any query.
वैसे तो नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, आपको कुछ सवाल नहीं है या कोई सवाल नहीं है? तो बाद में फिरोज थोड़ा सा हम एलपी के बारे में बात कर लेते हैं, देन विल डिस्कस बिल्कुल, अबाउट एब्सोल्युटली। राइट. सो Hi मनीष, guys. यू नाउ। Yeah. Hi guys, my name is Manish and we both are from LPU. Let me just brief you about the LPU a bit and uh, who we are, what we offer, and how can we go about it. So we are one of the biggest university in the country, and the campus is in 1,600 acres. It's a huge campus. We offer almost all the design programs. You name the program, and we have it. Similarly, the if you talk about the fee structure, the rankings, and the scholarships that we offer. So we are a NAC A++ university. That means the quality of education is pretty high. The score is 3.68 out of 4. And the fee structure is 1,40,000 rupees per semester. That means 11,20,000 rupees for the 4 years, which is very, very nominal as compared to the other universities. अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, अब स्कॉलरशिप्स की अगर आप बात करें तो जैसे हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं 10th के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, हमारे अपने एग्जाम के बेसिस पे, या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम हो, निफ्ट, एनआईडी, यूसी, उनके बेसिस पे. सो विच एवर इज हायर, जो सबसे ज्यादा होगा वो हम स्कॉलरशिप आपकी कंसिडर करेंगे. एंड द ब्यूटी ऑफ द स्कॉलरशिप इज कि जो स्कॉलरशिप आपको एक बार मिल गई वो आपको पूरे 4 साल के लिए मिलती है, उस पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती. जनरली होता क्या है, आपको 200% यूनिवर्सिटीज में ये मिलेगा कि या तो कंडीशन होगी अटेंडेंस की या सीजीपीए की. हमारे यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. एक बार आपको मिल गई, दैट इज फॉर 4 years. अब जैसे मान लीजिए अगर आपकी 10th या 12th में 80% से अबव है, 80 to 89.9, यू आर एलिजिबल फॉर 30% स्कॉलरशिप. If it is between 90 to 94.9, 40% scholarship. 95 to 97.9, 50% scholarship. And above 98%, 60% scholarship. अपार्ट फ्रॉम दिस, मान लो अगर किसी को स्कॉलरशिप मिल जाती है 30%, 40, 50 जो भी है, और आपके पेरेंट्स डिफेंस में हैं, किसी भी डिफेंस फोर्सेस में, या टीचर हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में, देन आपको 20% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी. राइट. और इसके अलावा हम ना एक बहुत मेजर सीएसआर एक्टिविटी करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टडी ग्रांट. जैसे कि आप लोग निफ्ट की तैयारी कर रहे हो, एनआईडी की तैयारी कर रहे हो, या यूसीट की तैयारी कर रहे हो, आप तीनों में से किसी भी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो और आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो और आपका किसी भी एनआईडी, निफ्ट या आईडीसी में सिलेक्शन हो जाता है, तो उस केस में और हमारे एग्जाम में आप टॉप 100 में आपका नाम आता है मेरिट में, तो हम लोग आपको 1 लाख रुपए देंगे निफ्ट, एनआईडी और यूसी आईडीसीज में पढ़ने के लिए. वो सेरेमनी हमारी दिसंबर के आसपास होती है, उसमें हम आपको बुलाएंगे, आने जाना और रहने का खर्चा भी हम देंगे, जस्ट टू प्रमोट एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिज़ाइन को प्रेफर करें, आई मीन नेशनल लेवल एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करें. राइट. सो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कुछ वीडियोस भी कैंपस की दिखाना चाहता हूँ. 1 मिनट. मैम, फिरोज मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yeah, I sir. can. We can see the screen. Yeah. दिस इज अ कैंपस. जस्ट अ मिनट.
We do offer all the sports facility within the campus. So a glimpse of sports facilities. So this is all about us. In fact, फिरोज आपको बता सकता है अगर आप फैशन के लिए स्पेसिफिकली कोई वीडियोस हैं या हमारे पास हम लोग बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स. सो लॉट ऑफ एक्सपोजर एट आवर कैंपस. So if you have any specific questions regarding scholarship, fee structure, anything you can ask any guys, anything. Yeah, it's a beautiful campus, and at the moment it is very nice because it's winter. It's very beautiful. It's very green. And as far as School of Fashion is concerned, so we do a lot of engaging activities with students. We are every year we've been participating in Delhi Times, Chandigarh Times. We have been doing Times Lifestyle Fashion Week. We have done Miss India context last year, 2023, where 16 of our students got selected and they showcased their garments. It was a resort round, and the series is available on GeoStar, I guess. So it is available there, Reliance channel. And it is, we are always we probably might be looking at Paris Fashion Week this year for our design collection students. And so we are being engaging. We are engaging with students. We are doing workshops. We are doing every possible thing to put you at the right place at the right time. So at this moment, we are also running this campaign called Education Revolution, where we are not sitting in the classroom. We are doing a lot of projects. Two of our students did this event called Miss India Africa. So the contestant who won, her name was Eve. The garments were made by two of our students, Sarfraz and Amit, and that's how they moved from traditional classroom teaching to project based. So we are looking at a lot of life projects. We're looking at engaging students with life problems. We have collaborated with Respun, जहाँ पर हम लोगों ने एक competition शुरू किया, which is called LPU Respun Sustainable Design Challenge. It started last year, and the edition 2 will be coming in next year. We are also building up this world class world class lab, which is called NTTM, which is Technical Textile Lab, which is a 6.25 crore project that we have got from the university, from the Ministry of Textile. We are building a world class amenities. We are working on projects like live art installation with a there's a lot that we are doing as a school, not as a school, as a university. And the beauty about LQ is that we are not running only fashion. We have people from multimedia, we have people from fine arts, we have people from computer science, engineering, mechanical, electric. You name it, we have it. We have this beautiful place called Innovation Center, where students from all the field come together and they are doing multidisciplinary designing. So we are looking at a lot of other things. It's a very engaging this thing. It is improving. It is improving every single day, where we are making education more project driven, not just where you sit in the classroom, you make your sketches and you're done. We are working on studios like AI driven studios. So this lot is happening, and I'm sure it's going to be a worthwhile journey in case if you wish to join LPU as a school, as a university. And I'm sure you'll enjoy the kind of people that are there from a lot of countries, a lot of cities. A lot of growth could be done in terms of human engagement. There are physiotherapists there, everything, you name it, we have it there. So I've been associated with LPU for good 6 years now, and I'm currently heading the Department of Fashion, and I'm sure you will be able to see the difference in you as a designer when you come once you come there.
If you have any question related to fashion, what we do and all, please do Guys, feel free to anything, ask. yes, related to Yeah, please fashion do ask. or admission process or Kuch bhi. exam, maybe scholarship or study grant. Sir, Sir, I have to ask for scholarship. स्कॉलरशिप, बेटा देखो, स्कॉलरशिप का जैसे कि मैंने बोला था आपको, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। स्कॉलरशिप आपको मिलती है आपके 10th के स्कोर के बेसिस पे, 12th के स्कोर के बेसिस पे, या हाँ। हमारे एग्जाम के बेसिस पे, और अदरवाइज अगर आप कोई भी निफ्ट एनआईडी यूसीट का एग्जाम दे रहे हो, उसमें जो भी आपकी रैंक होती है उसके बेसिस पे। सो जो भी स्कॉलरशिप, जो भी आपकी स्कोर ज्यादा होगा, हम उसे कंसिडर करेंगे आपका स्कॉलरशिप के लिए। वो जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो 4 साल की होगी, मिनिमम 30% एंड मैक्सिमम 60%। प्लस जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हैं या टीचिंग प्रोफेशन में है, उनको 20% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप है रिमेनिंग फीस पे। ठीक है, और जो भी आप स्कॉलरशिप मिलेगी वो पूरे 4 साल के लिए मिलेगी। हाँ जी, पूछिए। आपने बोला था कि लाइक निफ्ट निकलने के बाद और एनआईटी में निकालने के बाद और आपके जो एग्जाम है ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आएगा तो 1 लाख, क्या मतलब? दैट इज अलग। देखो, दो तरह की स्कॉलरशिप है। एक स्कॉलरशिप जो एलपी में पढ़ने के लिए, जो कि 30, 40, 50, 60% होती है, जो मैंने बताया, और वो है स्टडी ग्रांट। मान लीजिए आपने हमारा एग्जाम दिया और साथ में आपने निफ्ट एनआईडी यूसीट कोई सा भी एक एग्जाम दिया। निफ्ट एनआईडी यूसीट में आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी एक कॉलेज में, और साथ में हमारे एग्जाम में टॉप 100 में आपका नाम आता है, तो वी विल गिव यू 1 लाख रुपीज टू स्टडी इन निफ्ट एनआईडी एंड यूसीट, आई मीन आईडीसीज। ठीक है। और लाइक फिर उसके बाद हमारा बैकग्राउंड ही डिफेंस में, उसके बाद नहीं, डिफेंस लेना देना नहीं बेटा, दो चीज मिक्स कर रहे हो आप। स्टडी ग्रांट तो हो गया आपको निफ्ट एनआईडी यूसीट में पढ़ने के लिए, 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, आप निफ्ट में पढ़ रहे हो, आप उस 1 लाख रुपए कुछ भी करो, लैपटॉप खरीदो, निफ्ट की फीस पे करो, जो भी चाहे आप करो, हमने आपको दे दिए। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेते हो तो आपको जो आपकी स्कॉलरशिप है वो डिफेंस वाली वो मिल सकती है, 30, 40, 50 वो अच्छा। मिलेगी, प्लस 20% डिफेंस वाली मिल जाती है। मेरा ये क्वेश्चन था हाँ सर, जी। जो एग्जाम होगा वो जो 1 लाख स्कॉलरशिप के लिए, हम्म। वो हम लोग को कहाँ पे, मतलब ऑनलाइन बेस्ड होगा या हम लोग को यूनिवर्सिटी आना होगा? राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो बेटा, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं इसमें। वन इज प्रॉक्टेड एग्जाम, जहां पर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, वाईफाई फैसिलिटी एंड अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी। आप घर बैठे वो एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। 15 जनवरी ऑनवर्ड्स वो एग्जाम होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है बच्चा, वो फॉर्म प्लीज फिल करें सर से, शशि सर से बात करके, एंड हम लोग आपका एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। अदरवाइज हर सिटी में हमारे सेंटर भी बने हुए हैं एलपीयू के, आप वहां जाके भी एग्जाम दे सकते हैं। तो जब हम आपका फॉर्म फिल करेंगे बैकएंड से, एक बार आप शशि सर से जब बोल देंगे, तो हम आपको फोन करके पूछते हैं कि बेटा आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो। ऑलराइट। होते हैं मतलब जैसे कि वो होता है और इंटरव्यू वगैरह? इंटरव्यू पोर्टफोलियो नहीं होता बेटा, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा। ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, साथ में एक क्वेश्चन होगा आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जिसमें आपको ड्रॉ करना होगा। टोटल 2.5 आवर्स का आपका एग्जाम होता है ये। सर, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि एमएफएम पीजी है क्या एलपीयू में? फैशन मैनेजर एमएफएम हम लॉन्च कर रहे हैं इस साल। Sir, I need to ask that what are the placement that you give in fashion design department? फैशन डिजाइन में जो हमारा हाईएस्ट पैकेज गया, दैट इज 18 लाख रुपीज फॉर ट्राइडेंट इंडिया कंपनी, एंड द एवरेज इज 4.25 फ्रॉम लास्ट 4 years। प्लेसमेंट परसेंटेज इज 95%। अगर 100 बच्चे हमारे पास है तो 95% बच्चे प्लेस होते हैं। अर्शिया, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। देखो, प्लेसमेंट ना प्योरली डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। हम आपको हर वो चीज कराएंगे जो एक स्टूडेंट को करानी चाहिए प्लेसमेंट के लिए। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको मैनेज करने होते हैं, जैसे कि अगर आप 7.8 या 8 सीजीपीए से ऊपर मेंटेन करते हैं पूरे 4 साल, तो चांसेस ऑफ प्लेसमेंट इज मोर देन 200%। आपको मतलब प्लेसमेंट होगी होगी, और साथ में पैकेजेस भी अच्छा होगा आपका। हाँ, आपका जैसे जैसे सीजीपीए कम होता जाएगा, तो चांसेस ऑफ प्लेसमेंट्स आर लेस एंड द पैकेज भी कम हो जाएगा आपका। एम आई राइट, फिरोज? Okay, sir. या क्या कहते हैं, see, I always say this: placement is up to you. Any university, anywhere you go in the world, what they're going to give you is a door which you open and you step in. ठीक है। आप जब उसमें कदम रखते हैं ना, आपका इंटरव्यू होना है, आपने उस इंटरव्यू के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन करी है, ठीक है, कितना अच्छा आपने अपना पोर्टफोलियो डेवलप किया है, कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, that is the deciding factor for the amount and the company's hiring.
है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैंने किसी कंपनी को कॉल किया और मैंने बोला अच्छा आपको मैं बच्चे भेज रहा हूँ रख लीजिए। दैट इज नॉट हैपन। इट्स ऑलवेज इज अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू डू, नो मैटर विच कॉलेज पिकअप इन द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। every college is going to get you the companies, you sit in those company, you prove yourself the worth कि भाई आप मुझे हायर करिए, आप मुझे 5 लाख रुपए महीना दीजिए और मैं आपको 20 लाख रुपए महीना कमा के दूंगा। दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क। अगर हम आपको एक जॉब दिलवा भी देते हैं हमारे कहने पे, ठीक है, लेकिन परफॉर्म तो आपने करना है। अब आप जाके वहां पे टेंट्रम थ्रो करने लगे, जाके आप कहने लगे नहीं ये मेरे मेरे लायक का काम है, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट बेटा, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अ प्लेसमेंट is done. Yes, we have been able to get the best of placement done for Diksha Ketan, which was 18 lakh. And when you interact with this girl, she's a phenomenal girl. ठीक है, but there are average people also who come from various cities of the country. हम उनको train करते हैं, हम उनको communication पे काम करते हैं. We give them Saturdays classes for communication. We get them mock interviews. We design their resumes. We work on the projects with them. But as I said to you, exposure is very important. ठीक है, kind of projects that you are very important. ये बहुत important सवाल है, but इसका बहुत simple जवाब है. इसका simple जवाब ये है, आप अपनी वर्थ प्रूफ करिए। कोई कंपनी आपको हायर क्यों नहीं करेगी? आप उनको बताइए कि आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं हायर करेगी। आप बेहतरीन प्रोजेक्ट्स करिए, ठीक है, अपनी एकेडमीज में, क्यों नहीं हायर करेगी। अगर आप कुछ नहीं करके भी हायरिंग चाह रहे हैं, then I'm sorry, the school is not, you are not at the right place, ठीक है। No school will promote this कि आप ना कुछ करके भी आपको 24-25 लाख रुपए पर एनम की सैलरी में, that does not work. I hope you understand that, right? Yes, sir. Sir, I need to ask that majority companies are from Punjab that No, come no, from. no, no, no. Pan-India. The majority of our placement, majority of our internship are based in Noida, Gurgaon. There are people who have gone to Bangalore, Hyderabad. There are people who are working in retail. A few people, few people are working on their entrepreneurial ventures. बहुत सारे अलग-अलग मुख्तलिफ areas में काम कर रहे हैं। कुछ लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, कुछ लोग प्लेसमेंट हैं, ठीक है। पंजाब में तो मेरे ख्याल से 2-4 लोग ही हैं who are working. Other than that, everyone is coming to North India. They're coming to Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Chennai, Bangalore. They're going to such places. So our students' databases or student bases spread all over the country. Mumbai, yeah. Okay, sir. And Ji. sir, like the exam that you are conducting are similar to NIFT? Yes, it's very Syllabus similar to and- that. Yeah, it is very similar to that. It's on the same pattern. Okay, sir. Thank you, sir. No We'll problem. share the sample paper very soon with Shashi sir, and he will distribute the sample papers maybe in next 2 to 3 days. Okay, sir. Sir, could you tell more about digital designs in your college? Digital design means graphics, VFX. Yes, sir, graphics, VFX, animation, and UI UX. Yes, we do offer B design, VFX and animation, game design, graphic design, and interaction design. That is UX UI. So इनमें भी 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास. Let's say आप BSc डिजाइन भी कर सकते हैं और B डिजाइन भी. B design is for 4 years and BSc design is for 3 years. So, what are the placements of VFX and animation in your college? देखो ऑन एन Can you एवरेज detail जितने भी us? कम्युनिकेशन के डिजाइन प्रोग्राम, कम्युनिकेशन डिजाइन से रिलेटेड प्रोग्राम्स जैसे कि VFX एनिमेशन या UX UI और ग्राफिक्स और film and video, the package is around, highest package is 24 lakh rupees and the average is around 5.25. Okay, sir, thank you. सी अगर आप कम्युनिकेशन में देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा इंटरेक्शन डिजाइन पे थोड़ा फोकस करो, थोड़ा रिसर्च करो, और it's like a hot cake and there's a huge demand in the market for these kind of programs and the packages are humongous, opportunities are very high in the market, so chances of placements are very high. Yes, sir, so sure, I will do. Any other question, guys? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? सर Yes. मुझे ये पूछना था कि हम लोग को दोनों में मतलब NIFT NID या और जो LPU का होगा उन दोनों में अंडर 100 में ही मिलेगी ना स्कॉलरशिप? नहीं समझा मैं आपका क्वेश्चन. मतलब सर की जो NIFT NID की रैंक होगी वो भी अंडर 100 होनी चाहिए एंड नहीं जो नहीं 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 समझा बेटा.
आप निफ्ट एनआईडी यूसीड में सिलेक्शन होना चाहिए आपका, रैंक से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए निफ्ट बरेली मिल गया आपको, निफ्ट रायबरेली मिल गया, निफ्ट आपको कन्नूर मिल गया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता आप निफ्ट दिल्ली में हो या निफ्ट कन्नूर में हो। निफ्ट में या एनआईडी में या आईडीसी में आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने ज्वाइन कर लिया वहां पर, और साथ में हमारे एग्जाम में टॉप 100 में आपका नाम है, तो सर समझ आ गया? यस सर, यस सर। ऑलराइट गौरी। सर तो जो मीन्स निफ्ट और एनआईडी एग्जाम्स के देने के बाद ही आपका एग्जाम्स देना पड़ेगा, लाइक एलपीयू वाला? नहीं बेटा, एग्जाम तो पहले दोगे ना, एग्जाम हमको ना लेंगे निफ्ट के बाद। एग्जाम तो आप अप्रैल मई तक दे दोगे, रिजल्ट्स आपके जो डिक्लेयर होंगे वो अगस्त के बाद होंगे, क्योंकि हमारा भी रिजल्ट आ चुका होगा, निफ्ट की भी क्लैरिटी हो जाएगी जब तक, देन वी विल डिक्लेयर दी स्कॉलरशिप। ओके सर। हाँ जी। सर आपने सर मैं बताया था वो इवेंट के बारे में दैट यू आर मतलब दिसंबर में होगा, वो क्या था? वो स्टडी ग्रांट का यही सेरेमनी बता रहे थे ना, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो निफ्ट एनआईडी में और हमारे यहाँ टॉप 100 में नाम आ जाता है आपका, देन हम लोग एक सेरेमनी करते हैं स्टडी ग्रांट की, जिसमें हम आपको इनवाइट करते हैं, जहां पर आपको प्राइज मनी दी जाती है आपको। ओके सर। यस गाइस। सबके क्वेश्चंस पूछ के हो गए क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन Yes. था, जैसे निफ्ट में केट का वो 3 पार्ट में आता है, तो एलपीयू में भी 3 पार्ट में आएगा केट का क्वेश्चन? नहीं नहीं, यहाँ पर आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक होता है क्रिएटिव क्रिएटिव कैट जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ड्रॉ करना होता है, रेस्ट आपके आई थिंक 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू। सर सर 50 टाइमिंग एम क्या होती है? हाँ जी, टाइमिंग? टाइमिंग 2.5 एमसीक्यूज के लिए आपको मिलता है पूरा 1.5 आवर 90 मिनट्स, और 1 घंटा आपको क्रिएटिव का होता है जो आपको ड्रॉ करना होता है। सर कुछ भी सर क्वेश्चन हो सकता है उसमें? क्वेश्चंस कुछ भी नहीं, मतलब जनरली आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, फिर आपके कुछ इंग्लिश के होता है सेक्शन उसमें, और कुछ क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका सैम्पल पेपर मैं आपसे शेयर कर लूंगा वेरी सून। 2 से 3 दिन में शशि सर आपको शेयर कर देंगे आपके साथ। सर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग तो होती होगी देयर ना? इज नो नेगेटिव मार्किंग, so I always recommend to attempt all the questions. मुझे ओके। Can you please repeat, like, the questions, the exam is online mode or it can be conducted in offline also? बेटा बोथ दी मोड्स, देखो होगा आपका एग्जाम ऑनलाइन ही, आप प्रॉक्टेड एग्जाम सेलेक्ट करोगे ऑनलाइन, अगर आपके पास घर पे सारी फैसिलिटी है इंटरनेट की, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी की और लैपटॉप विद वेबकैम, तो आप घर बैठे भी दे सकते हैं, अदरवाइज हर सिटी में हमारे सेंटर्स हैं, आप वहां जाके भी दे सकते हैं। Okay, sir. Sir, actually, I am also from Punjab, Jalandhar only. So I just ओके, wanted to confirm, like, if we have to go to offline mode, then मर्जी बेटा, जलंधर में आप जाके हम यूनिवर्सिटी में जाके दे सकते हो, या आप घर बैठे भी दे सकते हो। okay, sir. Thank you, sir. राइट अर्शिया। यस गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? सर मुझे एक चीज पूछनी थी हाँ जी। कि सर जैसे कि जो 1.5 आवर एमसीक्यूज एंड 1 आवर फॉर क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, सो अगर हम लोग ने कम टाइम लिया मान लीजिए गैट में, तो क्या हम लोग वो यूटिलाइज कर सकते हैं कैट के लिए? नहीं, ओके, वही पूछना था कि वो 1.5 आवर जो मिलते हैं तो हम लोग उसको कम बेटा में देखो, करें। ऑटोमेटिक ये ना प्रॉक्टेड एग्जाम होता है, ये ऑटोमेटिकली वॉच चल रही होगी सिस्टम में आपकी। ओके, आपको पहले 90 मिनट्स मिले, आपने मान लीजिए 30 मिनट्स में खत्म कर लिया, जब तक उसे आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सबमिट करते ही आपकी क्लॉक बंद हो जाएगी, फिर दोबारा से 60 मिनट्स की क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी आपकी। एंड सर जो कैट वाला होगा तो वो हम लोग को मतलब हेड कैमरा सेट करके देन शो करना होगा? नहीं, उसमें आपको क्या होता है कि जैसे हाँ, वेब कैम से आपको देखते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब ड्रॉ करोगे आपके पास इंस्ट्रक्शंस आती है, पहले आपको A4 शीट लेके बैठना होता है विद पेंसिल कलर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है। देन उसके बाद जब आप ड्रॉ कर देते हो, देन आपको फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होती है ऑन द स्पॉट। सपोज हम लोग लैपटॉप से ले रहे हैं तो हम लोग लैपटॉप पे तो हम लोग डायरेक्ट फोटो नहीं खींच सकते ना? नहीं, फोटोग्राफ क्लिक करके आप सिस्टम
उसका सिस्टम होता है, वो आपको बता देंगे कैसे होता दो है, उसके आप। डिवाइसेस अलाउड होते हैं, दो हाँ, डिवाइसेस अलाउड होते हैं। देन आप फोन से कैमरा क्लिक करके यू कैन ट्रांसफर इट, यू कैन अपलोड इट। इट्स अ वेरी स्मूथ सिस्टम बेटा। माई क्लास पे होता है, इट्स वेरी स्मूथ सिस्टम, बहुत आराम से आप, आपको डेमो और वीडियोस भी भेज दिए जाते हैं एग्जाम से पहले। यू इनफैक्ट हैव अ एग्जाम से लुक पहले एट यस, दैट, आपको डेमो क्लास होती है आपकी। और आपकी क्लासेस भी होती हैं कि आप किस तरीके से करना है। तो सर मेरा क्वेश्चन था जैसे कि सर जैसे कि एग्जाम होता है तो सामने में अगर हम लैपटॉप से दे रहे हैं तो उस टाइम पे हमें देखा जाता है, लेकिन अगर ड्राइंग का एग्जाम है तो फिर ओवरहेड वाला कैमरा सेटअप करना होता है ना, तो उस टाइम पे कैसे होगा? मतलब हमें सामने से देखा जाएगा या हमारे ड्राइंग को बेटा देखो, देखा दो जाएगा? ये कैमरे सेट होंगे, एक होगा इसका आपका इसका सिस्टम का। इसका मनीष, आई लाइक टू आंसर दिस। हाँ जी। आज आपने एक वर्कशॉप करी ना एआई को लेकर, ठीक है, वो सारा एआई बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। सो यू विल बी मॉनिटर्ड, अगर आप लेफ्ट राइट भी देख रहे होगे, सो द कैमरा डू दैट, प्रोक्टर्ड होता है एज सर सेट कि जो आपको आज हमने वर्कशॉप बनाई बताई ना, ये 2019 में हम लोगों ने ये सिस्टम डेवलप कर लिया था। इट्स अ वेरी एडवांस सिस्टम। सो चीटिंग का कोई सवाल नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, एंड इट्स वेरी स्मूथ सिस्टम। उसकी घबराने की जरूरत नहीं हो कि आपको डेमो क्लास भी मिलेगी, आपको वीडियोस भी शेयर किए जाते हैं किस तरीके से राइट। यूटिलाइज करना है। और इट्स उसमें अ एक थर्ड वेरी आई भी वेरी होती है। या इट्स अ जैसे आप थर्ड। अपना पहले वेबकैम आपका जो सिस्टम का होगा, साथ में आपको अपना मोबाइल फोन भी सेट करना होता है, जी दैट इज थर्ड आई। तो वो आपको सारा एक्सप्लेन किया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। सर निफ्ट डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। निफ्ट डिप्लोमा के स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है? नहीं, डिप्लोमा के लिए, डिग्री प्रोग्राम के लिए बेटा ये। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? सर एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि डू पीजी स्टूडेंट्स आल्सो हैविंग क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट और ओनली जनरल एबिलिटी टेस्ट? मास्टर्स में क्रिएटिव टेस्ट नहीं होता हमारा, उसमें गैट ही होता है सिर्फ। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? बट द मास्टर्स में स्कॉलरशिप्स ज्यादा है हमारी, अगर कोई लवली में एडमिशन लेता है द स्कॉलरशिप्स आर हायर, आई थिंक अप टू 70%। गाइस इसलिए मैं बोलूंगा हर बच्चा एटलीस्ट स्टडी ग्रांट के लिए जरूर अप्लाई करे। अगर आपको लवली में एडमिशन नहीं भी लेना, एटलीस्ट ट्राई फॉर स्टडी ग्रांट, क्योंकि ये पैसा आपको एक अपॉर्चुनिटी है अर्न करने के लिए, जिसमें कोई आपको एक्सपेंस नहीं है आपका बहुत ज्यादा। फॉर्म फीस क्या होगी? फॉर्म फीस आप शशि सर से आप कर लेना, क्योंकि उनके लिए एक सब्सिडाइज फीस है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट साइट पे जाकर फिल करोगे इट विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज। पर आई थिंक शशि सर कराएंगे तो कुछ सब्सिडाइज फीस है, वो आप शशि सर से बात कर सकते हैं। इट इज अराउंड समथिंग 800 और समथिंग। आई थिंक वो सर के आठ। हाथ में है, वो सर के पास राइट्स हैं, तो कर सकते हैं वो। सर की बात हुई है सर से। अच्छा। तो सबसे पहले तो आपको सब सब बच्चों को इंटरेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर सर हमें आगे का प्रोसेस बताएंगे। मैं ग्रुप पे इंटरेस्ट फॉर्म डाल रही हूँ, सबको सब फॉर्म फिल कर देना। फिर हम आगे का फॉर्म जो है एलपीयू का, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल करेंगे। ओके। यस सर। तो मैं फॉर्म का लिंक डालती हूँ, सब भर देना। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। सर जैसे कि बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा होता है ना, हम्म। स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, फिर हमें स्कॉलरशिप मिलता है, उसके बाद फर्स्ट ईयर में रहने के बाद अगर हम्म। हमारा सीजीपी 7.5 है तो वो स्कॉलरशिप रह जाता है, नहीं तो वो फिर हट जाता है। तो क्या एलपीयू में भी ऐसे ही होता है? सयूरी, यही बात मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली थी कि द ब्यूटी ऑफ द स्कॉलरशिप इज कि हमारी जो स्कॉलरशिप है पूरे 4 साल के लिए है, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है।
मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आपकी 80 सीजीपीए 8 सीजीपीए मेंटेन करो या 80% स्कॉलरशिप करो। आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। जो एक बार आपको स्कॉलरशिप मिल गई दैट इज फॉर 4 years। अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो नए बच्चे के लिए होंगे, आपके लिए नहीं होंगे। वो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो आएंगे उनके लिए होगा। पर आपके लिए एक बार जो आपको मिल गई वो मिल गई। खाली हाँ, हो सकता है कि 75% से आपकी अटेंडेंस कम है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए, पर आपकी स्कॉलरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कॉलरशिप आपकी वही रहेगी जो आपको मिल गई। हमारी स्कॉलरशिप सिर्फ एक ही केस में आपकी कैंसिल होती है। कोई अगर आप डिसिप्लिनरी इशू हो, आपका आपने कोई गलत काम किया हो, कोई रॉन्ग प्रैक्टिस की हो, कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, तो हट सकती है। अदरवाइज स्कॉलरशिप पे आपकी अटेंडेंस और सीजीपीए से कोई लेना देना नहीं है। नो टर्म्स एंड ओके। कंडीशन। कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज भी है? बिल्कुल, हमारे इन पास हॉस्टल 45,000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है हॉस्टल्स की। और हमारे पास हर तरह का हॉस्टल फैसिलिटी है। 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, डबल ऑक्यूपेंसी, सिंगल ऑक्यूपेंसी, विद एसी, विदाउट एसी, विद फूड, विदाउट फूड, जैसा आप लेना चाहें ऑप्शन हैं। इनफैक्ट ऑल द फैसिलिटीज कैंपस में है हमारे पास। हॉस्टल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, फायर स्टेशन हो, मॉल हो, आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज अवेलेबल विद इन द कैंपस। सर आपने वो बताया था ना स्कॉलरशिप के बारे में, अगर पेरेंट्स टीचिंग प्रोफेशन में हो, उसके बारे में आप वापस से बता सकते हैं? बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी फीस है 1 लाख रुपए। वैसे हमारी फीस 1,40,000 रुपये पर सेमेस्टर। बट मान लीजिए सपोज कर लीजिए 1 लाख फीस है हमारी। आपको 30% स्कॉलरशिप मिल गई हमारे एग्जाम के बेसिस पे, या 10th एंड 12th के स्कोर के बेसिस पे 30%। तो आपकी फीस कितनी रह गई? 70,000 रुपीज पर सेमेस्टर, राइट। अब आपके यस। पेरेंट्स टीचर हैं किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में या डिफेंस में हैं, तो 70,000 रुपीज पे आपको 20% और स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपकी फीस हो जाएगी 56,000 रुपीज पर सेमेस्टर, ओके। राइट। तो मतलब आपको जो 4 साल की फीस रह जाएगी वो तकरीबन तकरीबन 4 लाख के आसपास रह जाएगी, अगर हम 1 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। अगर आप आज की डेट में इंडिया में कोई ऐसा कॉम्पिटिशन कॉलेज नहीं है जो इतने कम फीस में डिजाइन पढ़ाता हो। अदरवाइज जो एवरेज कॉस्ट है जो डिजाइन कॉलेज की 16 to 17 lakhs है। इनफैक्ट निफ्ट की फीस भी 16.5 लाख के आसपास है। तो हम सरकारी कॉलेज से भी सस्ते हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज प्रीटी हाई। कोई भी फैकल्टी मेंबर्स हमारा निफ्ट, एनआईडी या आईआईडीसी मतलब उस लेवल के ही हैं, या तो एनआईडी से हैं, निफ्ट से हैं, आईडीसी से हैं, एंड सम ऑफ देम आर फ्रॉम द इंटरनेशनल बैकग्राउंड। तो द फैकल्टी मेंबर्स आर प्रीटी मच फ्रॉम द टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी, पूछिए और क्वेश्चन पूछिए, कुछ पूछना हो तो। सर जिसके फादर नहीं हो तो उसको और भी कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है? बेटा फादर नहीं हो तो एडिशनल नहीं मिल सकती है आपको। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई स्कॉलरशिप हमारी नहीं ले पाते तो सिंगल मदर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ चांसेस हैं मिनिमम स्कॉलरशिप 20% मिलने के। अदरवाइज कोई सेपरेट एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप नहीं है उसके लिए। आप कौन सी सिटी से हैं बेटा? ओके। मैं यूपी, यूपी में कहाँ से? मथुरा। मथुरा। कोई बात नहीं, आप दिल्ली मथुरा से, दिल्ली इतना दूर नहीं है, आप दिल्ली मेरे पास आ जाइएगा एग्जाम देने। हम कोशिश करेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिल पाए। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा बट वी कैन ट्राई। यस गाइस, एनी क्वेश्चन? पूछो, जल्दी जल्दी पूछो जिसको पूछना है। सिद्धि, राखी, पृथ्वी, एनी क्वेश्चन? निशु, मेधा, लक्ष्मी, अभिनय, आप लोग प्रेजेंट भी हो यहाँ पे कि नहीं? यस सर, प्रेजेंट। वरना जनरली यस होता ही है सर। ना कि ये जब कोविड में ट्रेंड चला था ना ये ऑनलाइन का, तो लोग बस क्लास में आके म्यूट और वीडियो ऑफ करके आराम से सो जाते थे क्लासेस में। गाइस, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप शशि सर को आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन नोट डाउन माय नंबर
That is 9910812424. I'm repeating my number. It's 9910812424. आप शशि सर से भी मेरा नंबर ले सकते हैं और you सर can आई call हैव me वन anytime. क्वेश्चन। Sorry, सर मेरे को एक क्वेश्चन है। पूछिए पृथ्वी। सर स्पोर्ट्स कोटा है क्या आपके यहाँ पे? मैंने 2 बार रीजनल खेला है कबड्डी पे, मैं कैप्टन था अपनी टीम का। स्पोर्ट्स कोटा है हमारे पास। स्पोर्ट्स में हमारे पास 100% तक स्कॉलरशिप है, पर प्रॉब्लम ये बेटा उसमें आप डिजाइन नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप हमेशा फील्ड में होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। आप क्योंकि डिजाइन में काफी टाइम देना पड़ता है डिजाइन को आप। तो यस, सर अगर आप आई बीए सर नॉर्मल कोई मुझे नॉर्मल समझ प्रोग्राम आ रहा करना है, बट चाहते हैं। सर हाँ जी, जो मतलब मेरा कहना है जो डिजाइन में, सर उनको भी तो हक है खेलने का, दे कैन ऑल्सो प्ले सर। नहीं हक, मैंने आपका हक नहीं मारने की बात की बेटा। हक आपका पूरा है, आपको मना नहीं है कि डिजाइन में स्पोर्ट्स खेलने का। बट होता क्या है ना, जनरली जब आप स्पोर्ट्स में होते हो ना, तो आप इतना फोकस नहीं कर पाते अपनी एजुकेशन पे। आप जैसे आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे अपने स्पोर्ट्स के साथ, या आप स्पोर्ट्स के साथ आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। डिजाइन में क्योंकि टाइम देना पड़ता है। पर अगर आप मैनेज कर सकते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई कर सकते हो। और सर उस पे एक और क्रेडिट बात है क्या है पृथ्वी, सर? दीज आर स्किल बेस्ड यस सर। कोर्सेज। स्किल बेस्ड कोर्सेज में क्या होता है, व्हेन यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डू थिंग्स, ओके। सो आपकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी अगर भटकी हुई होती है ना, फॉर एग्जांपल वी विश दैट आप नेशनल खेलो, यू गो इंटरनेशनल। बहुत सारे स्टूडेंट जो ओलंपिक्स में भी जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर आप देखिए, अगर आपने स्पोर्ट्स ही परस्यू करना है अपने करियर को लेकर, लेट्स से अगर आपने अभी तक खेला है, आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दीजिए। बट ये सोचें कि आप स्कॉलरशिप लेके नेशनल खेलने जा रहे हो, यू विल बी एंगेज ऑल ईयर राउंड। एक तो एक चीज का ख्याल रखिए कि जो कोर्स है फैशन डिजाइन का, जितने भी डिजाइन कोर्स हैं, बाकी के कोर्सेज जैसे बीए बीकॉम वगैरह में इनकी फीस ज्यादा है, ठीक है। आप फीस ज्यादा देकर भी क्लास मिस करोगे, इट मेक नो सेंस, है ना। तो probably in case if you want to pursue only physical education and education in sport, then तो you should go with other courses, ठीक है। that's what we would recommend। और ये skill based courses जितना आप करेंगे उतना ज्यादा परफॉर्म करेंगे, and your work becomes a lot better than you not doing it, है ना। so वो थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज को आप सेट करें, अपने आप को फाइन ट्यून करें कि आपने यहाँ जाना है कि वहां जाना अदरवाइज वी आर सर नोन जैसे कि मेरा ना, सर मेरे को करना तो डिजाइन है, बट मैंने सर वो एक्स्ट्रा पूछ लिया क्योंकि मैं है। उस अच्छा पर अच्छा, रीजनल ठीक है लेवल ठीक खेला हूँ 2 क्योंकि साल पृथ्वी ऑफ। स्पोर्ट्स के लिए हम लोग ना जाने जाते हैं। आफ्टर स्टैनफोर्ड्स वी आर दी ओनली यूनिवर्सिटी वेयर इन सर 24 मैं आपको बच्चे एक बात लास्ट टाइम बताना चाहूंगा। ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए थे। सर मैं ना सर केवी जोन, तो मेरे स्कूल के मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हुए थे सर, 2024 में एलपीयू हाँ में था जी, उनका नेशनल। हाँ तो जी। मेरे को वहां से थोड़ा लगा, या फिर वहां पे होगा स्पोर्ट्स Oh, के it's लिए a ज्यादा। beautiful campus. You have everything. I think I can easily say that this is the only college university in the country who promotes sports to such big level. आप सोचिए, वेल नेशनल सेड। ओलंपिक साइज पूल्स हैं, you have stadiums, you have, I इनफैक्ट mean आपने it's, नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया का। हाफ ऑफ द नेशनल they are हॉकी यस all टीम सर। from ऑल आर here. फ्रॉम एलपीयू। ओह ग्रेट। Yeah, so they're very beautiful for sports. जो हमारे चांसलर सर हैं, they he promotes sports like anything. एनसीसी भी है हमारे यहाँ। जी। ओके सर। मतलब आप पूछते ऑलराउंडर। जाओ क्या नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जो नहीं है। अब जैसे स्पोर्ट्स में गोल्फ एंड हॉर्स राइडिंग छोड़ के सब कुछ है हमारे पास। सर तो फिर मैं अगर अपने स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन ले रहा हूँ स्कॉलरशिप पे बेसिस पे, तो वो मर्ज हो जाएगा ना मेरे, वो क्या मर्ज नहीं बोलते हैं होगा सर बेटा, फिर एक मिलेगा जो बेटर है। अगर मैं सारी चीजें मिला लूंगा तो 100% फ्री होगा। कई बार तो ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा 150% हो गया, 50% मुझे जेब से देना पड़ रहा है तुम्हें वापस। नो सर। तो ऐसे नहीं होता। जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है हम वो कंसिडर करते हैं आपका। ओके सर। अगर आपको मान लो कहीं पर 80% मिल रही होगी तो मैं आपको 80% दूंगा, आपको 50 वाली नहीं दूंगा। ओके सर, आई गॉट दैट। हाँ। किसी और के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? देखो क्वेश्चन ना कभी गलत नहीं होता, तो सोचना मत पूछते वक्त कि मैं गया गलत, कोई हंसेगा तो नहीं, कोई गलत तो नहीं पूछ रहा मैं। सो आस्क व्हाट एवर यू वांट टू। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि पूछो एंटी भाई। रैगिंग फॉर्म भी भरता होगा, क्योंकि आजकल बिल्कुल, रैगिंग बहुत कॉमन है। उसके बिना तो कोई यूनिवर्सिटी चल नहीं सकती। आखिर में यूजीसी यस की सर। नॉर्म्स है, तो आपको फिल करना ही होता है। वो मैंडेटरी है हम लोगों के लिए। आजकल हो रही है रैगिंग कॉलेजेस में? मुझे तो पता नहीं, आई डोंट देखो थिंक। एलपीयू में ना पॉसिबल नहीं है, उसके 2-3 रीजंस हैं।
हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात, एक तो डीयू की तरह, दिल्ली यूनिवर्सिटी सुना होगा आपने ना, तो डीयू की तरह हमारे यहाँ यूनियंस नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं होते हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो गुंडागर्दी तो है ही नहीं। और सबसे मजे की बात, जो लोकल क्राउड है दैट इज 8 to 9%। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास आउट स्टेशन से हैं, सब बाहर से आते हैं। तो इस चक्कर में जो बाहर से बच्चा आएगा ऑब्वियस है वो लड़ने झगड़ने या गुंडागर्दी करने नहीं आएगा, उसे पढ़ना है। दूसरी बात, जैसा मैंने बोला कि स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल सिर्फ एक ही रीजन से हो सकती है, डिसिप्लिनरी इशू। तो अगर हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज 30% स्कॉलरशिप बच्चों को आराम से मिल जाती है। अब जो 30% स्कॉलरशिप लेके आएगा तो वो पंगे नहीं लेगा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उसे पता है अगर उसने रैगिंग करी या कुछ गलत काम किया तो सबसे पहले 30% स्कॉलरशिप जाएगी, बाकी एक्शन तो सेकेंडरी है। तो कोई अपना 3-4 लाख का नुकसान नहीं करेगा किसी भी हालत में। तो चांसेस ऑफ रैगिंग, मुझे 5 साल से मैं एलपीयू में, मैंने आज तक कोई भी केस नहीं सुना रैगिंग का। और आई एम वन ऑफ द फैकल्टी जो बोलते हैं कि थोड़ा एंगेजमेंट रहना चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर वाले को पता नहीं कि सेकंड ईयर में कौन है, सेकंड ईयर वाले को पता नहीं फर्स्ट ईयर में कौन है। तो इस दफा से वी हैव स्टार्टेड दिस कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज हमारे स्कूल में, जहां पर हम अपने सब ईयर्स के स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। नॉट रैगिंग, आई एम सेइंग एंगेजमेंट, कि भाई एक साथ काम करें, बैठें, लंच करें, डिनर करें, दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, मूवीज देखें। सो वी आर प्रमोटिंग दैट दीज डेज, ताकि एटलीस्ट ह्यूमन इंटरेक्शन बने। शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं ना, हमारे कैंपस का इमेजिनेशन आपको इमेजिन करने को बोलूं, तो आपने करण जौहर की मूवीज देखी है, जिसमें एक जगह बाइसिकल चल रही है, कहीं स्केट्स चल रहा है, कहीं पर चेयर गर्ल्स हैं, और कुछ कहीं ना पर कुछ चलता रहता है, लोग आई घूम गेट। रहे हैं। तो सेम हालात लवली की है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 5 बजे के बाद यू सी द की। ब्यूटी ऑफ इट मोर। We लॉट। have more than 300 kiosks in our campus for food. 300, more than 300। तो कोई ऐसा खाना नहीं है जो आपको नहीं मिलता वहां पर सब कुछ वेज। नो राइट। कबाब्स। तो सो व्हाट अबाउट नॉनवेज? नॉनवेज के लिए एक सेपरेट छोटा सा डिवीजन है जो कैंपस के गेट के पास बनाया गया है, क्योंकि हमारे चांसलर साहब उसे प्रमोट नहीं करते, तो वो वहां पर आप कंज्यूम कर सकते But हो। some people are non-veg also. How can they survive without? हाँ जी। Sir, how can people survive without non-veg? Those who are really keen to eat नहीं, it. सर्वाइव खाने को मना नहीं, आप लाके खा सकते हो, बट कैंपस में नहीं बना, कैंपस में नहीं मिलेगा आपको। कैंपस के बाहर से ऑर्डर कर लो। Okay, sir. हम्म। अब ये मत बोलना कि यार मैं लवली नहीं आऊंगा इसलिए क्योंकि वहाँ नॉनवेज नहीं मिलता, ये कंडीशन नहीं, थोड़ी टफ हो जाएगी। बाहर, जस्ट बाहर लवली Yes, के sir. तेरे लॉट ऑफ शॉप्स अवेलेबल, जहां पर आप बिरयानी बिरयानी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। बोल रहे थे कि लाइक जो कास्ट सर्टिफिकेट है स्कॉलरशिप मिलने के बाद उस बेसिस पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ना होने होगा, नहीं लाइक नहीं जो अनिमा, देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ना कभी भी कोटा सिस्टम, कास्ट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता, हमारे लिए सब बराबर है। स्कॉलरशिप जो मैंने आपको बताई उसमें वहां पर मैंने कहीं पर भी कास्ट सिस्टम या कोटा सिस्टम की बात ही नहीं की, क्योंकि उस चीज में हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। बट हाँ, बस एक बेनिफिट होता है, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट से अगर आप हैं, तो आपको जो एलिजिबिलिटी होती है ना, जो हमें 50% मार्क्स चाहिए थे 12th में, वहां पर उनको हम 5% का रिबेट देते हैं कि 45% वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। दैट्स इट। ओके। Sir, I wanted to ask that are there any like trips for exposure of the students like to another cities or foreign countries? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स देयर आर समर स्कूल्स भी हैं हमारे पास, सेमेस्टर एक्सचेंज भी है हमारे, काफी सारे कोलैबोरेशंस हैं विद लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज इन अराउंड द ग्लोब। सो जब भी ऑप्शंस खुलते हैं, so we send it to student whosoever is interested and got the visas and passports. We always promote that students should have an active passport, and we send it to them. And apart from as far as your local trips are concerned, Delhi, Mumbai, wherever there are good events happening, we try and get our students on board and we take them there. Exposure is everything. Okay, sir. Yeah. I'm also from a I'm a NIF Delhi graduate. I graduated around 16 years back.
and I'm also I teach few courses at NIF sometimes. I'm paneled with FDDI, so I do a lot of things, and I see exposure when it comes to fashion. It is very important, and we firmly believe in it. हम जहाँ पे भी कोई भी exhibition होती है, जहाँ पे भी कोई भी event हो रहा है, we send it to the students, and interested students, they come together and we take a trip there. We are Okay. supposed to take two trips per term, with every batch. Okay, sir. Thank you. No problem. I'm so happy to see that it's an engaging crowd. You have a lot of questions. It's very exciting. It's very encouraging also. So good to have you people. I'm sure you must have learned something, and you must have got a lot of information that Manisha has already shared with you. So any other questions that we have? Sir, one last question that Yeah. do you know what is the exact date for the examination? बेटा देखो, एग्जाम की ना कोई हमारे एग्जैक्ट डेट नहीं होती। इसका रीजन है, हम लोग ना बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। एक बार आप अपना इंटरेस्ट फॉर्म फिल कर लोगे, देन हम बैकएंड से आपका फॉर्म फिल करेंगे। वी विल कंप्लीट द फॉर्म, देन वी विल कॉल यू कि बेटा आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है या आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। जब एक बार आपको कंफर्म कर दोगे, उसके बाद आपकी 25 दिसंबर के बाद डेट्स आना शुरू होंगे आपके डैशबोर्ड पे। जैसे मान लीजिए 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के स्लॉट्स अवेलेबल होंगे कि मॉर्निंग में 9 o'clock, आफ्टरनून में 12 o'clock या इवनिंग में 3 o'clock आपको देना है। आप जो स्लॉट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम और डेट शेड्यूल होगी। निफ्ट की तरह नहीं है कि हमने एक डेट दे दी है, या प्राइवेट कुछ कॉलेजेस होते हैं एक डेट दे दी, 500 बच्चा वहां आ गया एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपना एग्जाम दे सकते हो। इसमें एक चीज और है, हम आपको 2 चांस देते हैं एग्जाम देने के, इम्प्रूव करने के लिए। पहला चांस आपका, जो आप एप्लीकेशन कॉस्ट दोगे सर को, उसके बेसिस पे अगर आप सेकंड टाइम देना चाहते हो तो यू नीड टू पे 200 रुपीज एक्स्ट्रा, एंड यू कैन गिव सेकंड चांस एज वेल। सो जोन सा चांस आपका बेस्ट होगा हम उसे कंसिडर करेंगे। ओके सर। सर जो अभी आपने बताया एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? श्योर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बेटा, ओके सर। आपने पहले फॉर्म फिल किया, अपना इंटरेस्ट फॉर्म, हमने उसको फिर सिस्टम में एंटर की। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है या आपको एग्जाम ऑफलाइन सेंटर पे जाके देना है। जब एक बार आप कंफर्म कर दोगे, उसके बाद आपका हम फॉर्म जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ से, तो आपके पास स्लॉट्स आएंगे 25 दिसंबर के बाद कि आप किस डेट पे एग्जाम देना चाहते हो। वो स्लॉट्स होंगे 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के स्लॉट्स होंगे। उसमें आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो और टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो कि मॉर्निंग में देना है, आफ्टरनून में देना है या इवनिंग में देना है। जब एक बार आप सिलेक्ट कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास एडमिट कार्ड की मेल आ जाएगी आपके पास, और साथ में आपके पास सैंपल पेपर एंड मॉक टेस्ट की डिटेल्स आएंगी। आप डेमो अपना शेड्यूल कर सकते हो एंड यू कैन गिव द एग्जाम अकॉर्डिंगली। सर जो आप बोल रहे थे कि 2 बार हम लोग दे सकते हैं, मतलब वो मुझे अच्छा समझ हाँ, नहीं आया। वो बताता हूँ। मान लीजिए जैसे आपने फॉर्म फिल किया, आपने एग्जाम दे दिया, आपको लगा कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, या आपका रिजल्ट आया, आपने देखा आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आपको लगता है आप और अच्छा कर सकते हो, तो आप सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हो। आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है, यू नीड टू पे 200 रुपीज एक्स्ट्रा एंड यू कैन गिव द सेकंड चांस। ओके सर, थैंक यू। इसका रिजल्ट NIFT से पहले ही आ जाता है? बिल्कुल पहले आ जाएगा बेटा, इसका रिजल्ट आपका फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ फेब में आ जाएगा। हाँ, जब NIFT एग्जाम देने वाले होंगे। हाँ, मतलब फर्स्ट सेकंड वीक में। निफ्ट का जनरली 14 फेब या 12 के आसपास होता है, 10 से 14 के बीच में हो जाता है। सर फर्स्ट वीक अराउंड हो जाता है। मतलब हमेशा चेंज होती रहती है। हाँ। और कोई डाउट गाइस? बहुत सोच सोच के आ रहे हो। हाँ। नो सर, थैंक यू। पूछो पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है जो क्वेश्चन पूछते हो तो। इससे पता चलता है आप लोग सुन रहे हो मेरी बात। तो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप लोग निफ्ट की तैयारी कर रहे हो, राइट? यस सर। यस सर। So I'm doing for UCD, IDC. यो सीट, ओके। तो ठीक तो है। आज का सेशन ओवर करें या कुछ सबके पूछना है?
ठीक है, चलेगा। All right, ma'am. Thank you then. Thank you everyone and best of luck. Thank you, guys. Thank you, Firoz Have a sir. great day. Fantastic class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye bye. Bye. Bye, sir. Good night, sir. And तुम लोग रुको। अरे, तो कौन कौन भर रहा है ये फॉर्म? मैं भर रही हूँ। और आप यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हो ताकि मैं नंबर काउंट कर सकूं। मैम। एक, दो, बस दो लोग, तीन, चार। तो ऑल राइट। मैम हिसाब इवन आई वांट टू फिल मैम, बट मेरी हैंड रेस वाली गायब हो गई मैम। ठीक है, मैं मैम सजेस्ट मेरी तब ये फॉर्म फिल करो, क्योंकि अ, अभी जैसे थिंकिंग से हम अभी चलते, जिस कॉन्फिडेंस से हम अभी चलते कि हमारा हो ही जाएगा, हमको दूसरे कोई और लेना ही नहीं है ऐसा वैसा, या हमको जरूरत नहीं है, ऐसा एटीट्यूड मत रखो। एटलीस्ट हम कभी कभी जो नहीं सोचते वो भी चीजें हो जाती है, लाइक नहीं आती, नहीं होता निफ्ट में, या कहीं और भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो सेफर साइड ये फॉर्म आप भर के रखो। अगर आपका हुआ तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और इनका भी फॉर्म आपने दे के रखा है, इनका भी यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी लग रही है। पर्सनली मैं सोचूं तो मुझे भी रिग्रेट हो रहा है कि मेरे टाइम में मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। मैं बहुत ये थी कि निफ्ट में ही चाहिए, निफ्ट में ही चाहिए। पर ये भी अच्छा कॉलेज है, तो आप सेकंड ऑप्शन इसको रख सकते हैं। ओके, तो सेफर साइड भर के रखो। 800-900 रुपए कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हम ऐसे ही खाना खाने में डाल देते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में इसका फायदा होने वाला है, देन व्हाई नॉट। क्योंकि पिछले साल मुझे सर ने बताया ऐसे बच्चे थे जिनका रैंक 40 और 16 आया था, ऑल इंडिया रैंक, और उन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा था। तो वो बाद में पूछ रहे थे कि ये फॉर्म का क्या। तो वो तब नहीं, ये स्कॉलरशिप का ये बेनिफिट नहीं ले पाए। तो मैं आपको पर्सनली बताती हूँ कि ये फॉर्म भरो, आपका फायदा ही होगा। ओके। यस हमने मैम। आपका नुकसान हो, आपका पैसा वेस्ट जाए, ऐसा वैसा। हम चाहते हैं कि आपका फायदा होने में हमारा ही फायदा है। सो भर दो फॉर्म। अभी मैं इससे ज्यादा आपको और कन्विंस नहीं कर सकती, पर मैं चाहती हूँ कि आप सब भरो। ओके। ओके मैम। मुझे ये पूछना था कि हम लोग को इसी में डायरेक्ट फीस जमा करनी होगी, नहीं जो नहीं, ये मतलब। आपका इंटरेस्ट फॉर्म, इसके बाद आपको लिंक आएगी उस फॉर्म फॉर्म की, तो फिर हम वो फिल करेंगे। पहले आपको इंटरेस्ट फॉर्म फिल करना है। तो फिर उस फॉर्म पे, मतलब उसके बाद आपको सब डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएगा उनकी तरफ से। मतलब मुझे तो ये कॉलेज और मतलब ये सब इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा, कन्वीनियंट, आपके हिसाब से बनाया गया लग रहा है कि स्टूडेंट का बहुत सोचते हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि कोई लॉस होगा अगर आप इसको सेकंड प्रायोरिटी समझे। मैम, मेरे ब्रदर की फ्रेंड पढ़ती है वहीं पे एलपीयू में ही, तो वो बता रही थी कि अच्छा यूनिवर्सिटी है। हम्म। तो मैम मतलब आप कौन से कॉलेज से? मैं एसएनडीटी से हूँ। उसके पहले मैं अभिनव, मतलब मेरा पहले गवर्नमेंट कॉलेज था, अभिनव मैम तो कला आपने महा। निफ्ट से नहीं किया? मैं तो फाइन आर्टिस्ट हूँ। ओह okay. मैं पेंटिंग करती हूँ। इसलिए मैं बस आपको ड्राइंग की, पर मैंने दिया है एंट्रेंस। मैम एनआईटी है मास्टर्स ना? बैचलर के लिए? हाँ। मैम मास्टर्स के लिए कि बैचलर के लिए? मैंने मास्टर्स के लिए दिया था, पर मेरा सेंटर काफी दूर आ रहा था।
और मेरा भाई का मतलब डेथ हो गया है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे दूर छोड़ने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, तो दैट्स वाई मैंने वो छोड़ दिया। और यहाँ पे अभी मैं पूना में हूँ। कौन पूछ रहा है? सयूरी पूछ रही है ड्राइंग क्लास कब होगी। ड्राइंग क्लास आपकी होगी ट्यूसडे को। क्या ट्यूसडे को? हाँ, तो आपके ड्राइंग्स के साथ आप रेडी रहो एटलीस्ट। अभी इतना दिन मैंने गैप लिया है, मुझे कुछ एफर्ट्स दिखा अपने साइड से। कोई ऐसे खाली हाथ मत आना, और अच्छे अच्छे ड्राइंग्स लाना प्लीज। यस मैम। करना मुझे ज्यादा से ज्यादा लाना, ऐसे दो तीन ऐसे नहीं। पता है हमारे कॉलेज में हम जब सबमिशन देते हैं ना, तो लिटरली इतना इतना बंच होता है स्केचेस का बच्चों का। उतना करते हैं वो लाइव ऐसे स्टेशन पे जाके वगैरह। आपको एटलीस्ट उतना नहीं करना है। आप पर डे दो तीन करो तो भी हमको बहुत लग रहा है। वो ओके। क्या बोल मैम, मुझे एक चीज बोलनी थी। मैम, आप कुछ स्केच के रेफरेंसेस दे सकते हो क्या, जो व्यूज इंपॉर्टेंट है? मतलब क्यों हम लोग ना, जैसे कि मैं व्यूज बनाती हूँ ना, तो वो पर्सपेक्टिव में आते नहीं है। मतलब पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है। अभी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जितनी मैंने की है उसके अकॉर्डिंग, कि ह्यूमन फिगर मतलब अभी बहुत ठीक ठीक आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। मतलब जो पोस्चर है वो बैठने वगैरह का, वहां पे बिगड़ जाता है थोड़ा सा। बाकी स्ट्रेट फिगर्स एंड साइड फिगर्स बहुत सही आ रहे हैं अभी। तो मैम, जो जब हम लोग ना उसको बैठाते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन में, तो उसमें ना वो जो पर्सपेक्टिव में फिर वो गड़बड़ा जाता है, अगर मैं बाद में व्यू बनाती हूँ तो। ये तो मैंने तुमको बोला है कि पहले तुम अपना सब सेटअप ड्रॉ कर लो। आपका ह्यूमन फिगर कहाँ से कहाँ तक आएगा सब बॉक्सेस ड्रॉ कर लो। वो किस चीज के लिए? इसी इसी के लिए ना, कि हमको अंदाजा आ जाए कि अभी कोई इंसान, एक कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे खड़ा है, तो कितना अभी देखो ना, इतना पर्सपेक्टिव का कितना ये होता है। तो वो अंदाजा लेके ही आपको वो बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। फिर वो बॉक्सेस को आपको, अगर नहीं अंदाजा आ रहा है, प्रोपोर्शनेट फिगर नहीं हो रहा है, तो आप उस बॉक्स को डिवाइड कर दो। 7 में नहीं कह रही मैं, 7 में टाइम लगेगा तुमको। तो तुम अंदाजा ले लो कि हाफ में अगर बॉक्स हम कट करें, तो उसमें कितना कितना कैसा कैसा प्रपोर्शन आता है। क्योंकि अब तुम्हारा 7 हेड का अभी तुमको आसानी से होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। नेट का नहीं होता, वो जो हम लोग उसमें बैठाते हैं ना, जब कंपोजिशन में, तो उसमें छोटा हो जाता है, तो वो बिगड़ थोड़ा, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर लो, फिर उसके हिसाब से आप बैकग्राउंड ड्रॉ कर लो। ऐसे अलग अलग टेक्निक आप ट्राई करो, क्योंकि आप कभी कभी बैकग्राउंड ड्रॉ करते हो पहले, तो आपकी बिल्डिंग्स पूरे पूरे दिखते हैं, कि लाइक पूरे सीन में आपका पूरा बिल्डिंग बैठ रहा है जो आगे है। तो आपको मजबूरी हो जाता है कि उसके सामने अभी ह्यूमन कितना दिखाएंगे, इतना। तो इसलिए पहले ह्यूमन फिगर का आप बॉक्सेस ड्रॉ कर लो, फिर उसके हिसाब से बैकग्राउंड ऐड कर दो। कुछ कॉम्पोजिशंस दे सकते हो क्या, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, तो हम लोग उसको कॉपी, मतलब उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। वो बुक तो मैंने डाला है ना इस पे। मैम, वो मेरा ना फिर से क्या हो गया है, पता नहीं कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा वो। ठीक है, मैं मैम देख। आप उसे रीसेंड कर दीजिएगा, मेरे पास भी नहीं रहा वो। ठीक है, मैं कुछ पिन करने मैम ऑप्शन है उसको, मैं पिन ही करके रखती हूँ, फिर कहीं गायब नहीं होगा। मैंने स्क्रॉल करके ढूंढा था, पर वो फिर जब मैंने खोला ना, क्योंकि मेरा अभी शायद मैम, मेरा अभी रीस्टार्ट हो गया था, पूरा रीसेट हो गया था फोन, कुछ इश्यू के कारण, तो शायद उसके कारण हूँ, पर वो अब डाउनलोड नहीं हो रहा वो। और मैं उसको सेव करना भी भूल गई थी डाटा में। ठीक है, मैं डालती हूँ फिर से। अभी आप फटाक से वो फॉर्म भर दो पहले, इंटरेस्ट फॉर्म। तो मैं अभी बैठी हूँ, तो मैं आपको उसका लिंक, जो मेन फॉर्म है उसका लिंक भेज पाऊंगी। तो आप जल्द से जल्द भर देना, सब भूल जाओगे आप सब। तो अभी कर दो जो जो भरने वाले हो। ओके, यस मैम। तो मिलते हैं ट्यूसडे को। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था। हाँ, मैम आप जो ड्राइंग रेफरेंस देती है ना, वो कॉपी सही से हो जाती है, पर सोच के वो ड्रॉ नहीं हो पाता है।
तो आप अभी ऐसा करो कि जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस है इसके ह्यूमन एनाटॉमी ह्यूमन फिगर के, वो देख देख के करो और फिर उसको याद करके करो, टाइम लगा के, कि मैम आपका मैंने एक फिगर शशि होना। सर से मैम मैंने शशि सर से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि आ, मतलब 2 4 या 4 5 ह्यूमन फिगर प्रोपोर्शन में ना ड्रॉ करके आपको भेज देने को और सर को भेज देने को। हाँ फिर भेजो ना, आपकी साइड से मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिखते हैं, तो जरा दिखे तो हम भी एफर्ट्स ले, ज्यादा हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने ऑब्जर्व किया शायद आप ही वही हर क्वेश्चन करते हो, पर मुझे आपकी साइड से असाइनमेंट्स नहीं आते। तो अभी पहले आपके साइड से आने दो, फिर हम आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दे दे के इम्प्रूव करेंगे। ओके। ओके मैम। मैम चलो बाय बाय, गुड नाइट। हाँ। मैम मुझे ये बोलना था कि सर ने ना बोल रहे थे कि तुम लोग 5 6 ना वो जो कॉम्पोजिशन होते हैं ना, कि मतलब जैसे वेजिटेबल मार्केट हो गया, या जो मतलब कि एक बार उसको रट लो कि कैसे कैसे क्या बैठता है, तो तुम लोग को मतलब कुछ चेंजेस ही, अगर मान लीजिए वेजिटेबल मार्केट या कुछ और दे दिया मार्केट जैसा ही, तो हम लोग वैसा ही हम लोग कुछ रिलेटेड बैठा सकते हैं ऐसा। हाँ तो वही है ना, मैं तो वही बोल रही थी कि आप पहले 3 एंगल तो रट लो अच्छे से। आपकी पहले 3 ही अच्छे से नहीं बन रहे तो कैसे आगे जाए ना। मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि पहले अच्छे से प्रपोर्शन में आप फ्रंट एंगल, साइड एंगल, 1/3 एंगल अच्छे से खड़ा हुआ और चलता हुआ ड्रॉ करना शुरू करो, तो हम आगे का ले ले। वैसे सिखाया है आपको, बैठे हुए भी फिगर सिखाए हैं। पर भी मैम वो बताएं नहीं आ रहे हैं, मतलब जब उसको हम लोग बैठाते हैं ना, तो उसका जो प्रपोर्शन है वो बहुत गड़बड़ हो रहा है बैठने वाला, क्योंकि अभी सर ने भी होमवर्क दिया था उसमें भी यही प्रॉब्लम हुई थी। आपकी ऑब्जर्वेशन कम हो रही है गौरी। आप गिन गिन के करो हर एक चीज, कहाँ से कितना गैप छूटा है, कहाँ से ये कितना है, उतना आप पहले 2 3 एक के बाद एक कंटिन्यूसली ट्राई करते रहो, तो चौथी पांचवी बार आपका हो जाएगा। सोच रही हूँ कि एक ही मतलब एक फिगर ले लिया, उसी को हम लोग 5 एक एक बार देख के बनाए, फिर ऐसे 5 6 बार एक ही फिगर को बनाए, तो क्या इससे होगा? ऑब्वियसली होगा। मैं क्या कह रही हूँ, अभी फिलहाल तो आपका ये हालत नहीं होना चाहिए इस टाइम में भी, कि आप फ्रंट साइड एंड 1/3 आपका ये तो रट्टा मार के हो जाना चाहिए था अभी तक। एक तो कंफर्म पूरा सही से आ जाता है, फिर वो जो बैठा हुआ होता है तो थर्ड। राइट, कर लो तुमको क्या क्या रट्टा मारना है। तुमको फ्रंट एंगल, उसका फेस, उसका हैंड, फ्रंट साइड, 1/3, और ये तीनों एंगल फिर से चलते हुए कैसे आता है वो भी, मतलब हो गए ये 6 चीजें, इनके बैठे हुए पोस्चर्स, और 3 बढ़ गए, 9, और फिर नीचे ग्राउंड पे बैठे हुए इन तीनों के कितना हुआ, 12। ये 12 फिगर्स रट्टा मार लो। फिर तुमको इसको एक अलग अलग कपड़ा पहनाना है, अलग अलग हेयर स्टाइल करना है। फिर ये 12 फिगर हो जाए तो इनमें एक्सपेरिमेंट करना है कि ये मोटा हो जाए, पतला हो जाए, बूढ़ा हो जाए, या कुछ एकदम टीनेजर, तो कैसा होगा ये फिर आगे का चीज है। पहले ये 12 तो कर लो, ये बेसिक है, ये तो हो जाने चाहिए थे अभी तक। फेब में एग्जाम आएगी, अभी तक तुम्हारे ये 12 फिगर नहीं हुए हैं, कब 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 जाएंगे हम कंपोजिशन की तरफ। बैठे वाले में बस बहुत ज्यादा, बैठे वाले में प्रपोर्शन गड़बड़ हो जाता है, बाकी वैसे पर वाला। पूछने में ज्यादा और काम करने में कम जा रहा है। ठीक है, यस मैम। मुझे ज्यादा दिखाओ। ओके मैम। ठीक है, और किसी को कुछ दिक्कत है? मैम मेरे पे रेलवे स्टेशन नहीं बनना, मार्केट तो बन जा रही है, मार्केट सीन। आप बस इतना ही ड्रॉ किया? आप बस रेलवे स्टेशन और मार्केट, इतने दिन, कितना दिन छुट्टी था?
मैं वुमन फिगर भी हो जा रहा है, बट मार्केट सीन में ना वो वुमन फिगर कभी आगे आ जा रहा है ट्रेन की, कभी छोटा हो जाता है, तो वो दिक्कत ज्यादा हो रही है उसमें। प्रैक्टिस से हो जाएगा। अभी हमारे प्रैक्टिस सेशंस ज्यादा होने वाले हैं। बस आपका एक कॉमिक स्ट्रिप वाला होगा, फिर आपके धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं। और अभी मैं डांटना शुरू करने वाली हूँ सबको, क्योंकि अभी मुझे आपका सबका प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड चाहिए, ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शनेट चाहिए। अभी कोई गंदा निकालेगा ना, तो मैं शशि सर को लेके ही बैठूंगी क्लास में। ठीक है? यस मैम। तो कोई मुझे अभी अगले सेशन में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अच्छे अच्छे ड्राइंग्स ड्रॉ करके दिखाओ। अगर मैंने लाइव कुछ प्रैक्टिस करने को बोला तो सब अच्छा ड्रॉ करे, इतना प्रैक्टिस करके आओ। ओके? ठीक है। यस मैम। यस मैम। अगले सेशन में हम कॉमिक स्ट्रिप लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा तुम स्टडी करके आओ ताकि मुझे तुम भी क्वेश्चन कर सको। तुम्हारे क्या कंफ्यूजन्स है, तुम कोई ड्रॉ करके देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें किस में दिक्कत है, तो मैं फिर अगले सेशन में तुमको वो क्लियर कर दूँ। ठीक है? ओके मैम। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।